All right, guys. Hello, everyone. Assalamu alaikum. So we are back with our fourth workshop of deep learning masterclass, which is TensorFlow Dataset API. And sorry for not available on camera today because I'm not at my home, and of course there are more reasons as well. Okay. So I'm at my software house, and currently as you already know, on the very first day, the webcam of my laptop died, so I'm not having camera. So today we're going to study some interesting thing, the same thing which we studied earlier yesterday, but with some interesting API, which is TensorFlow Dataset API. तो आज हमारा काम कुछ खास नहीं है, लेकिन वही है. अच्छा, उसके अलावा I have just seen the chat at Discord server in artificial intelligence forum. I'll come to that at the end, or maybe in the beginning of the workshop. इसके अंदर some students were having confusion in bias and some more things. So I'm gonna configure those things pretty clearly in this workshop. So if for example bias, if you are having any kind of conflictions in bias and weights, so please ask any type of questions during the workshop today. Because I like that people discuss in the Discord server, because that is what very pretty essential for everyone to know pretty configurably that what is weight and what is bias. ठीक है. अब अगर आपको weights और bias के बीच में थोड़ी सी भी confusions हुई ना, तो in the future end बहुत जल्द आपको डीप लर्निंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और फिर आप लोग थोड़ा सा स्टक हो जाओगे यार कि ये हो नहीं पा रहा. अच्छा, कल आपको वैसे वेट्स और बायस के बारे में अच्छी खासी चीज़ें पता है, यू ऑलरेडी नो दैट दे बोथ आर ट्रेनेबल एज वेल. बट द फैक्ट यू गॉट कंफ्यूज इज बिकॉज ऑफ द यस्टरडेज वर्कशॉप ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जिसके अंदर वेयर आई हैव टोल्ड यू दैट बायस इज सिंपली लाइक अ कांस्टेंट हियर. ठीक है. और समवन सेड के हमारे पास बायस जो है वो वेट है, विच इज टेक्निकली रॉन्ग. इट्स टेक्निकली नॉट राइट बिकॉज बायस कैन नॉट बी अ वेट. ठीक है. बायस हमारे पास एक कांस्टेंट है. अब उसको हम स्लोप की क्वेश्चन को देखते हुए आज दोबारा देखेंगे, लेकिन साथ साथ जो हमारा मेन टास्क है टेंसर डेटा एपीआई, उसको भी हम देखेंगे. एंड टुडेज वर्कशॉप इज गोइंग टू बी शॉर्ट. ठीक है. हर हफ्ते हमारी कोई एक दो वर्कशॉप शॉर्ट होंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड मे बी टुमारोज वर्कशॉप विल आल्सो गोइंग टू बी शॉर्ट, लेकिन कल की वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है. तो आज की वर्कशॉप भी इंपॉर्टेंट है, और क्या जरूरत थी इस चीज़ की पढ़ने की जो कि हम पढ़ रहे हैं, लाइक टेंसर डेटासेट एपीआई, जो कि पाईटॉर्च में नहीं होती. पाईटॉर्च में थोड़ा डिफरेंट काम होता है. पाईटॉर्च के अंदर डायरेक्ट ही आप टेंसर्स बना रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. पाईटॉर्च में भी होती हो टेंसर पाईटॉर्च की कोई डेटासेट एपीआई, लेकिन यहाँ पे टेंसर डेटासेट एपीआई के अंदर देयर इज समथिंग बिट डिफरेंट about the story. All right. So let's just start. Before starting, if you guys are having any concerns regarding joining the workshop, for example, as Tayyab had last time when he joined team, it was asking about the name, but right now it didn't ask about name. So please help. Okay. So don't worry. If you have joined before without name or with name, there's no matter. But I'm pretty sure कि आपने ज़ाहिर है गूगल की जो हमारी डीएससी की वेबसाइट है उससे ही ज्वाइन किया है. Because if you have joined from that website, then you don't have to worry about it. As far as you are logged in on Teams or Teams on the web as well, for 60 seconds, your attendance will gonna mark at the same point. All right. So let's just go ahead. So what is TensorFlow Data API and what are our learning objectives today? So we're going to learn how to use TensorFlow.data to read data from the memory, uh, how to use TensorFlow.data in a training loop, how to use TensorFlow data to read data from the disk, and how to write production input pipelines with feature engineering, batching, shuffling, etc. प्रोडक्शन इनपुट पाइपलाइन विद फीचर इंजीनियरिंग का सिर्फ आज बेसिकली इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन होगा. बहुत ज़्यादा एडवांस के अंदर नहीं होगा. एंड ऑफ कोर्स यू गाइस ऑलरेडी नो कि अभी प्रोडक्शन लेवल पे अभी है भी नहीं. बट ओके, लेट्स सी. So in this notebook, we start by refactoring the linear regression we implemented in the previous lab, so that it takes data from tf.data.dataset, and we learn how to implement stochastic gradient descent with it. In this case, the original dataset will be synthetic and read by the tf.data API directly from memory. अब क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे बेसिकली कि हमारे पास कोई ना कोई डाटा पड़ा होगा. डाटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है मेरी रिपोजिटरी के अंदर, तो मेरे इस पे जाके और आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पे मेरा तीनों को अलग अलग बना दिए. सो लेट मी शो यू दैट एज वेल. उसको लोड होने दे एक मिनट.
So okay, we can't make this beautiful and searchable because it's too large. All right, so it's large, I know that. तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है, थोड़ा सा अजीब सा दिखने में आपको लग रहा होगा, बिकॉज इट्स अ सिंपल डाटा जिसके अंदर हम कुछ लिनियर टाइप कोई एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट कर सके। हमारे पास और भी डाटा थे, लेकिन आई ऑलवेज ट्राइड सम न्यू डाटा ऑल द टाइम। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास जो पहले डाटा था उसके अंदर इतनी कभी रोज नहीं होती, इसमें बहुत सारी रोज हैं, लाइक 7333 रोज, ठीक है ना। 7300, मोर देन 7300 रोज है हमारे पास। तो मतलब हमारे पास सैंपल्स बहुत सारे हैं। बट फॉर द डीप लर्निंग इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम। मशीन लर्निंग तो टाइम लेती है थोड़ा, लेकिन डीप लर्निंग टाइम ही लेगी। अगर टाइम ले भी लेगी तो इट गोइंग टू बी एक्यूरेट, डजंट मैटर कि हमारा डाटा 7000 हो या 7 मिलियन हो। So in the second part, we learn how to do a dataset with Tier 2 Data API when a dataset decides on this. All right. अब ये जो मेरा डाटा है सारा का सारा, ये जो यहाँ पे तीनों आप फाइल देख रहे हो, ये आप लोगों की जो भी डायरेक्टरी में पढ़ा हो, आप लोगों ने वो डायरेक्टरी मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है गूगल ड्राइव के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सी ट्रेन, टैक्सी वैलेट और टैक्सी टेस्ट। ये मेरे पास बहुत सारे डाटा सेट्स यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमने मशीन लर्निंग में यूज़ करते रहे। तो अभी फिलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ये तीन डाटा सेट जो पार्टीशन डाटा सेट है, जो आज हम यूज़ करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक। और मैंने आज एक नया मेथड देखा जो मुझे पहले कभी मैंने यूज़ नहीं करा था, एंड दैट्स असर्ट, एंड दैट्स प्रीटी ग्रेट। आई एम गोना टेल यू अबाउट इट ड्यूरिंग द वर्कशॉप। ओके, so in this, the JSON module is mainly used to convert the Python dictionary when dictionary above into a JSON string that can be written into a file। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई JSON क्यों यूज होता है भाई। तो भाई JSON हमारे पास एक डाटा फॉर्मेट है, और आपको पता होगा कि डाटा हमारे पास की एक स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं। अब अगर आप बात की जाए कि डाटा, जहाँ पर डाटा एनालिसिस की बात होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर डाटा CSV या फिर एक्सएलएस फॉर्म में, मतलब एक्सेल फॉर्म में जनरेट हो रहा होता है। या बैंक्स के अंदर बात की जाए, या बात की जाए कि मतलब फाइनेंस के एरियाज के अंदर या हेल्थ के फैक्टर में, तो जितने भी हमारे पास जहाँ पे स्टॉक्स या स्टेट्स की बात हो, तो ज़्यादातर डाटा जो मैंने देखा है वो एक्सेल की फाइल में ही जनरेट हो रहा होता है। बट लेकिन जब टेक्निकल फॉर्म की बात होती है तो हम लोग थोड़ा उसको और लाइट वेट करते हैं, बिकॉज CSV इज हाई लाइटर देन एक्सेल फाइल। तो हम CSV में जनरेट कर रहे होते हैं, एंड सिंस इट्स अनफॉर्मेटेबल, क्योंकि एक्सेल में तो आप कलर भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, फॉन्ट बोल्ड कर सकते हो। CSV में ऐसा कुछ नहीं होता, सो इट्स ऑलवेज द लाइटेस्ट फॉर्मेट ऑफ एनी काइंड ऑफ डाटा फाइल। लेकिन जेसन क्या है? जेसन, यू गाइस हैव ऑलरेडी नो, हैव बीन स्टडीइंग वेब डेवलपमेंट एंड अदर थिंग, और SQL वगैरह अगर चीज़ आप पढ़ रहे हो या कभी पढ़ी हो, तो हमारे पास जो डाटा बेस में से डाटा जो आ रहा होता है, किसी भी क्वेरी के सेंड करने पे हमारे पास एक डाटा आ रहा है। तो यूजुअली इट्स अ गुड प्रैक्टिस, वी नेवर सेंड डाटा ऑन एन CSV or Excel फॉर्मेट, वी सेंड डाटा ऑन अ जेसन फॉर्मेट। तो हम जेसन फॉर्मेट को, जेसन के स्ट्रिंग को हम एक फाइल में राइट कराने के लिए यहाँ पे एक पाइथन की मॉड्यूल लाइब्रेरी हमारे पास, इंपोर्ट जेसन। इसी तरीके से हमारे पास अगर पाइथन की डिक्शनरी है कोई, तो उसको भी हम जेसन में कन्वर्ट करा सकते हैं बाय यूजिंग दिस जेसन। इट हैज लॉट्स ऑफ fundamental task in this library, so anything regarding performing JSON we can done by by this using this library import JSON। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो आप सबने यूज करी होगी, import maths for some mathematical functions, and then we're gonna have the library of import OS। This OS module provides OS based function for interacting with operating system। Colab पे शायद इतना अच्छा काम ना करें, but of course they're gonna work on your Jupyter notebook when you are working on a local system। Then you are having the ppprint module provides a capability to ppprint arbitrary Python data structures in a form which can be used as an inputter। यहाँ पे आगे तक लिखा हुआ है as input to the interpret, जो भी है। अब ये इसका काम क्या है, ये आके आपको जब दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, अभी आपको इसे समझ में नहीं आएगा। सो जस्ट लीव इट दिस टू हियर। आगे देखते हैं। नंपाई को हमने इंपोर्ट कर लिया, टेंसरफ्लो हमने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे टेंसरफ्लो का वर्जन प्रिंट कर लिया, एंड दैट्स ऑल। वी आर हैविंग एवरीथिंग हियर, ओके। देन अब हमारा काम शुरू होता है डाटा लोडिंग का। डाटा लोडिंग से पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी जो डाटा था वो गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है। तो अब डाटा मेरा गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, तो मेरा ये कोड है, ये कोड मुझे लिखना पड़ता है। अभी लिखना ज़रूरी नहीं कि मुझे लिखना पड़ा, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, कभी कभी यहाँ से कनेक्ट करने पे नहीं चलता। मशीन लर्निंग गाइस नो, मेरा कभी कभी यहाँ से कनेक्ट करने पे नहीं चलता, तो मुझे बोलता है कि रन दिस सेल टू माउंट योर गूगल ड्राइव। मैं बोलता हूँ चलो सही है।
अब फॉर एग्जांपल मैं रन टाइम डिस्कनेक्ट करता हूँ आपको ये चीज़ दिखाने के लिए। हियर वी गो एंड जस्ट सेव। अभी दोबारा एलोकेट होगा। ओके, so you got it. Then we run it again. Now we're running again. Now you can see it's saying go to this URL in a browser. अब मैंने इस पे लिंक पे क्लिक करना है और ये यहाँ पर आ जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के पास ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है और दिस इज माई पर्सनल ईमेल एंड देन वी गोना गेट बिलो एंड देन वी गोना मेक इट अलाउ। ठीक है, अब हमारे पास एक कोड आ जाएगा। ये आपका होता है ऑथराइजेशन कोड। यहाँ से आपने कॉपी करा। हो सकता है आपका ना है, मेरे पास पता नहीं, अक्सर आ जाता है, लेकिन अभी ये पुराना तरीका होता है, नए उसमें नहीं आता, लेकिन कभी कभी फिर भी आ जाता है जब उसको लग रहा होता है कि भाई कोई बॉट एक्सेस कर रहा है, कुछ एक्सेस कर रहा है, तो देन समटाइम्स। अभी क्या बोल रहा है, माउंटेड एट गूगल ड्राइव। तो अब हम अपनी गूगल ड्राइव को अपनी इस कोलैब में एक्सेस कर सकते हैं। नाउ गोइंग फर्दर, loading data from memory, creating the data set. Let's consider the synthetic data set of the previous section. इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहला डेटा सेट बनाया था अपना, वो सिंथेटिक था, वो टॉय डेटा सेट था कि हम एक इक्वेशन के ऊपर बेस करते हुए एक डेटा सेट डेवलप कर रहे थे। तो आज यहाँ पे दोबारा वही काम करते हैं, जस्ट फॉर अ माइनर इंटुएशन। तो ये काम करने से पहले हम ये काम करने के साथ साथ मैं आपको आज बायस और वेट का एक दफा कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर कर दूंगा, अकॉर्डिंग टू लीनियर रिग्रेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एन पॉइंट 10 ले लिए। ओके, और यहाँ पे हमने एन पॉइंट 10 क्यों लिया था कि हमें 10 डेटा सेट चाहिए होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा, द डॉट कांस्टेंट मेथड विल क्रिएट्स अ कांस्टेंट टेंसर फ्रॉम अ टेंसर लाइक ऑब्जेक्ट। आई होप दैट यू गाइस ऑलरेडी नो दिस। टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट, देन हमने रेंज में कितना दे दिया, 10 दे दिया। एन पॉइंट्स का मतलब है 10, चाहो तो डायरेक्ट 10 में डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। एंड देन वी आर हैविंग डी टाइप इज इक्वल टू टी एफ डॉट फ्लोट 32, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी डेटा जनरेट होगा 0 से लेके 9 तक, वो फ्लोट 32 उसमें होगा, इट में होगा। देन हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 × x + 10। अब क्योंकि हमारे पास x के अंदर टेंसर होगा 0 से लेकर 9 तक का, तो हमारे पास y के अंदर जब मैंने ये डाला 2 को उससे मल्टीप्लाई करो, उससे 10 प्लस करो, तो हमारे पास y का डाटा भी अपने आप जनरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर x, एज वी डिड yesterday. The same thing is happening in a very easy manner. All right, let's do it. Then तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हो रहा है। दैट वी बिगिन विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन, इम्प्लीमेंटिंग अ फंक्शन दैट टेक्स एज इनपुट और x and y vectors of synthetic data generated by the linear function, the number of passes over the data set we want to train on epochs, the size of the batches, the data set, batch size, and return the data set. Then there is a remark. Note that the last batch may not contain the exact number of elements we specified because the data set was exhausted. If you want batches with the exact same number of elements per batch, we will have to discard the last batch by setting. अच्छा, अब क्या कह रहा है हम यहाँ पे और क्या नहीं कह रहे, ये आपको समझ में आएगी कोड के अंदर। देखो, पहले तो समझ में आपको ये पड़ेगा कि इपॉक्स क्या होते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि द नंबर ऑफ पासेस ओवर द डेटा सेट, आइट्रेशंस को हम इपॉक बोलते हैं। अच्छा, एक इपॉक्स के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। अब ये ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मुश्किल होगी कि स्टेप्स और इपॉक में फर्क क्या है, तो वो आपको अब समझ में आएगी। बैच साइज क्या, बैच साइज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ओपन एन कैलकुलेटर फॉर दिस टू लेट यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल, पहले तो हम मैनुअली स्टेप्स चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं, दैट्स नॉट अ केस। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास 1000 सैंपल्स हैं, ठीक है, और हमारा बैच साइज क्या है, 2 है, तो मतलब एट अ टाइम 2 सैंपल्स हमारे पास इनपुट में आ रहे हैं। एट अ टाइम हमारे पास 2 सैंपल्स इनपुट में आ रहे हैं, तो हमारे पास कितने स्टेप्स बनेंगे टोटल, 500 बनेंगे। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, लेट मी मेक इट क्लियर। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, बिकॉज मेरी लैपटॉप की अभी लैपटॉप में अभी यूज कर रहा हूँ, उसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, सो आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोइंग टू बी ब्लर ऑल द टाइम। स्टेप्स इज इक्वल टू बैच साइज, नो सॉरी, टोटल सैंपल्स बैच साइज। ठीक है, तो ये समझ लें एक तरीके से उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये मैंने वो डाल दिया, सॉरी फॉर दैट।
यहाँ पे बेसिकली डिवाइड हो रहा है। अब ये क्या है, बेसिकली सर्च नहीं कर रहा मैं, कैलकुलेटर पे काम करेंगे हम। हमारे पास सैंपल है 1000 डिवाइड बाई 2 करा हमने, क्यों? क्योंकि हमारा बैच साइज 2 था, हमारे हमें ये पता चलेगा कि हमारे टोटल स्टेप्स कितने बनेंगे, 500। हर ईपॉक के अंदर 500 स्टेप्स परफॉर्म होंगे। दैट्स अ रूल ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे पास 500 इपॉक हैं, तो वो द इपॉक्स आर सेम लाइक स्टेप। देखें, कल की वर्कशॉप से उसको कंपेयर मत कीजिएगा। कल जो थी वो हम जस्ट स्टेप्स के ऊपर काम कर रहे थे, आज हमारा काम इपॉक्स पे भी है। आज हम थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने आप का लेवल जो ऊपर जा रहा है। तो अब हमारे इसमें स्टेप्स भी होंगे और इपॉक्स भी होंगे। तो आप उस स्टेप्स को एज एन इपॉक कंसिडर मत कीजिएगा, बिकॉज आज हम लोग बैच साइज को स्पेसिफाई कर रहे हैं। कल जो हमने काम किया था उसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही डेटा जा रहा था, हमारा बैच साइज 1 था। तो क्या होगा कि हमारा जो था एट अ टाइम एक ही डेटा जा रहा था, अब हमने बैच साइज क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो मतलब एट अ टाइम हमारे पास 2 सैंपल्स जा रहे हैं। अब जब हमारे पास 2 सैंपल जा रहे हैं, तो मतलब एक स्टेप के अंदर 2 सैंपल जा रहे हैं, तो हमारे पास 1000 सैंपल्स के लिए हमें कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, 500 सैंपल परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब इन एनी केस अगर हमारे पास फॉर एन एग्जांपल, लेट मी क्लियर दिस, how it's going to clear. Okay. So after clearing it, let me try out something else. हमारे पास 2000 samples हैं and our best size is 34 for an example। ठीक हो गया। तो हमारे पास उसने बोला कि हमारे पास 58 पॉइंट समथिंग या 59 उसमें समथिंग में हमारे पास जो है डेटा जा रहा होगा। और इस तरीके से हमारे पास हर इपॉक में इतने स्टेप्स होंगे, उसके बाद एक हर इपॉक पे एक बैक प्रोपगेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर डाटा दोबारा से जाएगा और दोबारा से फीड फॉरवर्ड शुरू होगा, फिर वापस बैक प्रोपगेट होगा, फिर दोबारा से आगे आएगा, फीड फॉरवर्ड होगा, फिर दोबारा से बैक प्रोपगेट होगा। तो ये कहानी हमारे पास चलती रहती है। अब आप अगर ये सोच रहे हो फॉर एन इंस्टेंस कि भाई मैं अपना बैच साइज अगर 2000 सैंपल्स है मेरे पास, तो मैं 2000 ही रख देता हूँ। सो यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज बैच साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोर्स यू आर हैविंग। ठीक है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उतने ही बैच साइज डालो जितने आपके प्रोसेसर में कोर्स हैं। तरीका और भी अच्छा होता है, अगर आप चाहो तो उतना बैच साइज भी डाल सकते हो जितने आपके पास प्रोसेसर में थ्रेड्स हैं। आपको मालूम करना हो कि आपके प्रोसेसर में कितने कोर थ्रेड्स हैं, वो आप मालूम कर सकते हो। और अगर आप अपना प्रोग्राम जीपीयू पे रन कर रहे हो, देन आपके जीपीयू में अच्छे खासे कोर्स होते हैं, बट स्टिल इट विल नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस कि आप 500 600 100 जो है बैच साइज अपना डाल दो। मेक इट अ नॉर्मल वन कि आपके जीपीयू के ऊपर भी लोड ना है। आपका जीपीयू उस चंग उसको लेते जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर आप एआई को जीपीयू पे रन भी कर रहे होते ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका सीपीयू पे काम परफॉर्म नहीं हो रहा था, आपके सीपीयू पे काम फिर भी परफॉर्म हो रहा होता है। So since I am having this dual core i7 here in a laptop, तो मैं 2 ही रखूंगा, लेकिन अभी मैं काम कोलैब पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोलैब के हिसाब से कोलैब के मुताबिक साइज रखूंगा, जो कि हम 4 तक जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 रखा हुआ है, which is pretty good, don't need to exceed it। Alright, तो चले आगे चलते हैं। ओके, वे हमने यहाँ पे जो बात करी बैच साइज के बारे में और इपॉक्स की, अब हम उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे वो करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स डिफाइन क्रिएट डेटा सेट प्रोसीजर हेयर। पहला टास्क हमारा टू डू का मतलब होता है टास्क हेयर, कि हमें क्या करना है, क्या करना था हमें। डिफाइन क्रिएट डेटा सेट एक्स कोमा वाई कोमा इपॉक्स कोमा बैच साइज। ठीक है, ये हम एक फंक्शन तैयार कर रहे हैं खुद से बाय द स्क्रैच, कि हम एक्स का इनपुट देंगे, हम वाई का इनपुट देंगे, हम उसको इपॉक्स भी बताएंगे, हम उसको बैच साइज भी बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन के अंदर नीचे आ जाएगा। जब हमारे पास ये फंक्शन के अंदर आ जाएगा, तो फिर हम एक एपीआई यूज करेंगे टी एफ डाटा की, जो कि है टी एफ डॉट डाटा डॉट डाटा सेट फ्रॉम टेंसर स्लाइसेस, और उसके टपल के फॉर्मेट में हम पास करेंगे एक्स कोमा वाई। टपल के फॉर्मेट के कहने का मतलब क्या है कि डबल ब्रैकेट है। ठीक है, तो बेसिकली ये टपल के फॉर्मेट पे जा रहा है यहाँ पे डाटा हमारे पास एक्स कोमा वाई। अब टपल के अंदर लिस्ट मौजूद हो सकती है, टपल के अंदर नंबर एरे मौजूद हो सकती है पर एलिमेंट, लेकिन एट द रैपर एंड हमारे पास टपल होना जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, डाटा सेट डाटा हमारे पास ये एपीआई हमने मेंशन कर दी। यहाँ पे जो हमने एक्स और वाई इनपुट करेंगे इन द फ्यूचर, ठीक है ना, वो हमारे पास इस पैरामीटर के थ्रू इधर आ जाएगी हमारे पास इसके अंदर एक्स वाई के अंदर, और हमारे पास जो टेंसर बेस्ड डाटा होगा किस में आसान हो जाएगा, इस डाटा सेट नामी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, हम डाटा सेट
अब क्योंकि इसमें हमारे पास टेंसर्स होंगे, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग टेंसरफ्लो डाटा एपीआई, हमारे पास अब डेटा सेट में टेंसर्स होंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका एक मेथड यूज करेंगे जो कि है टेंसर डॉट रिपीट, लेकिन यहाँ पे हम डेटा सेट लिखेंगे क्योंकि हमने नाम क्या दिया, डेटा सेट नाम दिया है। डेटा सेट डॉट रिपीट epochs डॉट बैच, बैच साइज क्या हमारा ये है, और ड्रॉप रिमाइंडर ट्रू। ड्रॉप रिमाइंडर क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे यहाँ पर देखो आप, इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, ये आंसर क्या आ रहा था जब हमने 24 को डिवाइड किया 34 से, तो हमारे पास चला था 58.82। तो ये ड्रॉप रिमाइंडर 2 करने का मकसद यही होता है कि फॉर एग्जांपल हमें या तो अगर एग्जैक्ट बैच साइज नहीं दिया हमने बाय चांस, तो आपका प्रोग्राम कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, क्रैश नहीं कर जाएगा कि भाई अब जब लास्ट पॉइंट पे इसको जब 34 पॉइंट्स नहीं मिल रहे होंगे तो बोलेगा भाई जब 34 नहीं मिला 32 मिल रहा है, 32 इशारिया कुछ मिल रहा है, वो ये इस तरह की बातें करेगा, ठीक है। तो अब ऐसे सूरत हाल के अंदर कन्फ्लिक्शन ना पैदा हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉप रिमाइंडर ट्रू, तो वो आराम से जो होगा ना नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर जाएगा। ऑलराइट। और एक इसलिए भी एक वजह और भी होती है कि जब आप बैच साइज मेंशन करते हो ना, तो इनकी कोडिंग कुछ इस तरह की हुई हुई है कि बैच साइज जो होगा ना टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करके देख लेगा कितना इनपुट लेना है मुझे, या क्या कितने स्टेप्स बनेंगे, स्टेप्स देखने के लिए वो चीज काम करता है। तो जब वो कर रहा होगा तो उसके पास वैल्यू जा रही होगी 58.8, जब 58.8 वैल्यू जा रही होगी उसके पास, तो यार वो तो ये बोलेगा कि 50.8 अब मैं कैसे डेटा में से उसके पीसेस करूँ, ऑब्वियस सी बात है नहीं कर सकता। तो इसलिए भी हम ड्रॉप रिमाइंडर ट्रू मेंशन कर देते हैं कि भाई रिमाइंडर हमारा ट्रू है, ताकि हमारे इसमें कोई कंफ्लिक्शन पैदा ना हो। देन वी गोना रिटर्न अ डेटा सेट। नाउ लेट्स टेस्ट अ फंक्शन बाय पहले इसको रन कर लेते हैं। नाउ लेट्स टेस्ट अ फंक्शन बाय iterating twice over a data set in batches of 3 data points। अभी टेस्टिंग हो रही है, अभी हमने काम शुरू नहीं करा है, जैसे हमने कल किया था ना कि पहले छोटे छोटे कोड बना के रख लिए थे और सारा कोड एक साथ हमने चला दिया था, जैसे यहाँ चला दिया। तो अभी हम छोटे छोटे कोड चला रहे हैं एंड देन वी गोना सी एट द एंड कि हमारा सारा कोड एक साथ कैसे चलता है। सो नाउ हियर लेट्स टेस्ट अ फंक्शन बाय iterating twice over a data set in batches of 3 data points। बैच साइज हमारा क्या है, 3 है। इपोक क्या है हमारा, 2 है। डेटा सेट इज इक्वल टू क्रिएट डेटा सेट हमारा क्या है, एक्स वाई इपोक्स 1 बैच साइज 3। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पे बैच साइज क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पे इपोक्स क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा वो भी देखते हैं क्यों नहीं लिखा। ये हमारा बैच साइज और इपोक जो है ना बेसिकली एज ए सिस्टम अपॉइंट किया है कि हमारा यही बैच साइज रहना चाहिए और हमारा यही इपोक रहना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई चीज़ चेंजिंग हुई तो मतलब हमारा सिस्टम जो है कन्फ्लिक्शन पैदा कर रहा है, और उसकी वजह से हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर एक्यूरेसी भी डिस्टर्ब हो सकती है और मॉडल फट भी सकता है, ठीक है। फटने से मुराद है मतलब ब्रेक हो सकता है। Now for I, x, y in enumerate data set, अब ये इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर एट अ टाइम ये तीनों चीज़ें के मुताबिक आइट्रेट हो रही होंगी, एनुमरेट डेटा सेट। अब डेटा सेट के अंदर हम ये एनुमरेट कर रहे हैं, अब ये हमारे पास जो आई होगा ना ये हमारे पास एक तरीके से नंबर ऑफ इंडेक्स है, ठीक है। और इस नंबर ऑफ इंडेक्स के मुताबिक हम एक तरीके से यूँ समझ लें कि हम सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था ट्यूपल। अब ट्यूपल में एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज थी, या तो हमने लिखा होता फॉर एक्स इंटू वाई तब भी चल जाता, लेकिन हमें एक एक चाहिए था फॉर इंडेक्स राइट नाउ, तो हमने आई को एज एन सपोर्टिंग इंडेक्स यहाँ पे ले लिया। अभी एक्स वाई हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हर इस टेबल का हर जो लिस्ट होगी ना वो लिस्ट इससे जब साथ एनुमरेट होगी हमें वो देखनी है। सो आई होप दैट यू आर गाइस फेमिलियर विद ऑल दिस बेसिक फंक्शंस एंड फॉर लूप वगैरह जो जितने भी हैं। Now you can convert a native TensorFlow tensor to a NumPy array using .numpy method. Now let's output the value of x and y. Print प्रिंट क्या कर दिया हमने, हमारे पास यहाँ पे x था, हमने x को numpy में प्रिंट कर दिया, y को भी numpy में प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये जो होगा ना कितनी दफ़ा चलेगा, अगर आपको याद हो क्या कितनी दफ़ा चलना चाहिए, तो इट डिपेंड्स ऑन अ डाटा कि हमें डाटा कितना बड़ा दिया। ऑलराइट, तो हमें डाटा कितना बड़ा था हमारा 0 से लेके 9 तक का था। तो कहाँ से पता चला मुझे, यहाँ से 10 आइटम्स थे हमारे, हमारा डाटा 0 से लेकर 9 तक था। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 3 3 का बैच साइज पे डाटा हमारे पास डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है,
क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा सेट इक्वल टू डेटा सेट, हमने यहाँ पे वैसे क्या मेंशन किया, 3 मेंशन किया है, और डेटा सेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट आ गया है। ठीक है, अब डेटा सेट हमने यहाँ पे जब डाल दिया है, तो अब एक्स डॉट डम्पाई करेंगे, वाई डॉट डम्पाई करेंगे, तो वो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम 3 वैल्यूज आएंगी तीनों में, क्योंकि हमारा बैच साइज क्या है, 3 है, तो एट अ टाइम हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं। फिर ये हमने एजेट किए ये चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कभी कभी एक्सेप्शन भी आ सकती है। अगर एक्सेप्शन क्यों आ सकती है, अगर मैंने ड्रॉप रिमाइंडर 2 ना लिखा होता यहाँ पे, ठीक हो गया, अगर ड्रॉप रिमाइंडर 2 ना लिखा होता तो मेरे पास एक्सेप्शन आ जाती। तो अगर एक्सेप्शन आती तो मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रोग्राम फटता, बस लिखा हुआ आ जाता लॉग उसके अंदर कि भाई असर्शन जो है एक्सेप्शन आ रही है। अब एक्सेप्शन कैसे मैंने प्रिंट करी, यहाँ पे मैंने लिखा assert learn x इज इक्वल टू बैच साइज। अगर ये कंडीशन फेल्स हो रही होगी ना, तो मेरे पास फौरन क्या होगा, उसकी एक्सेप्शन रिटर्न हो जाएगी कि भाई ये मसला है, ये फेल हो रही है। कोई इसमें वो चक्कर नहीं, या तो हम ये कहना कि इफ len x इज इक्वल टू बैच साइज प्रिंट कि भाई len इज नॉट इज इक्वल टू बैच साइज, वो भी काम कर सकते हैं आसानी के लिए, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल काम कर लेते हैं। हमने असर्ट मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये क्यों मेंशन करा, दैट इन एनी केस अगर हमारा बैच साइज 3 है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया, ठीक है, अगर हमारा डाटा 3 की फॉर्म के अंदर नहीं होता है, इसकी टोटल लेंथ एक्स की किसी भी वक्त 3 नहीं बनती टोटल, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन रिटर्न हो जाए कि भाई ये एक्सेप्शन आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा assert epoch फॉर एन एग्जाम्पल फॉर एनी काइंड ऑफ मतलब वर्किंग। अगर हमारी epoch 2 ना बन रही हो, हमारी epoch फॉर एग्जाम्पल 1 बन रही हो, हमारी epoch 3 बन रही हो, लेकिन हमारी epoch 2 ना बन रही हो, सो इन दैट सिनेरियो हम क्या लिखेंगे, assert epoch, ताकि अगर हमारे पास epochs में कोई इशू है कुछ भी है तो हमारे पास उसका भी वो जो है जनरेट हो जाए। लेकिन राइट नाउ हमारे पास अगर आप असर्ट इपोक नहीं भी लिखेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल से कोई फर्क पड़ता, क्योंकि ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है। तभी मैंने, अगर आप देखो तो मैंने ये फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ भी नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर नो एक्सप्लेनिंग, ये कुछ भी नहीं है असर्ट इपोक या कुछ भी, जब तक मैं यहाँ पे इज इक्वल टू कुछ और ही डालूंगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया असर्शन एरर, देखा आपने, असर्शन एरर आ गया मेरे पास। तो ये असर्शन एरर जो होता है ना, ये साइंटिक्स एरर नहीं कहलाता, दिस इज नोन एज एक्सेप्शन। अगर ये आपके पास विद इन द प्रोग्राम आ भी रहा होता है ना इन प्रोडक्शन, तो आपका प्रोग्राम अक्सर औकात जो होता है आपके प्रोग्राम के बाकी सेल्स रनिंग में रहते हैं, सब आपके प्रोग्राम का वो ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है खराब हो जाता है। ऑलराइट, अगर आपको डील करना हो कि अगर ये एरर एक्सेप्शन आ रही हो तो उसकी जगह जगह मुझे क्या काम कराना चाहिए, तो जाहिर सी बात है फिर आप वो वाला काम करते हो, ट्राई कैच वाला, जो भी आपके होते हैं एरर हैंडलिंग। तो अभी हमारा ये काम ही, दिस इज जस्ट फॉर फन हियर। ऑलराइट, लेट मी रन दिस फॉर रिमूव द एक्सेप्शन। अब आ जाते हैं हम अपने लॉस फंक्शन और ग्रेडियंट्स के ऊपर। ना द लॉस फंक्शन एंड द फंक्शन दैट कंप्यूट ग्रेडियंट आर द सेम एज बिफोर। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस पे मैं तुम्हारा डिटेल्स इसलिए बताऊंगा क्योंकि कल आप लोगों के शायद कुछ कंफ्यूजन्स आपके इसमें रह गई हैं काफ़ी सारी। नाउ व्हाट इज बैच साइज, किसी ने मुझसे पूछा है। ओके, और मोहम्मद अली ने बोला सर इन दिस केस स्टेप इज 3 बट इपोक इज 1। ओके, बिल्कुल, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अभी हम लोग इपॉक्स पे डील कर रहे हैं, और एक इपॉक में मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, कल हमारे पास मल्टीपल इपॉक नहीं होते तो हम अपने स्टेप्स को ही एज एन इपॉक काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कल बैच साइज भी नहीं था। आज हमारे पास बैच साइज है, मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एट अ टाइम कितना नंबर ऑफ डाटा जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, फॉर एन एग्जांपल 100 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, आई एम हैविंग 100 कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, एंड देन जो भी बंदा मेरे पास आ रहा है, या इसको एक काम कर लेते हैं कि मैं एट अ टाइम मेरे पास 100 कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, और एक दिन में मैं 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स पी रहा हूँ। अब वो कितने दिन लगेंगे उसको, अगर मैं एक दिन में 4 पी रहा हूँ 25 डेज लगेंगे। लेकिन अगर एक दिन में मैं एक पी रहा हूँ तो उसको 100 डेज लगेंगे उनको ख़त्म करने में, उन तमाम कोल्ड ड्रिंक बॉटल को ख़त्म करने के अंदर। इसकी एक अच्छी एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि मैंने आपको एक काम दिया है, मैंने आपको बोला कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी प्रूफ रीडिंग करनी है। अगर आप एट अ डे 2 पेजेस की डॉक्यूमेंट प्रूफ रीडिंग करते हैं और टोटल मेरे पास 1000 पेजेस हैं, तो आपको 500 डेज टोटल लग जाएंगे, मतलब एक साल से भी ज़्यादा
लेकिन अगर आप रोज 50 पेजेस की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो आप 20 डेज के अंदर, कहाँ एक साल ज़्यादा लग रहा था आपको, 1.5 साल लग रहा था, और आप कहाँ 20 डेज के अंदर आप पूरे 1000 उसकी आराम से इजीली प्रूफ रीडिंग करके बैठ जाएंगे। तो बैच साइज इंक्रीज करने से हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि भाई इसको प्रूफ रीडिंग करने के बाद इसको कंप्यूटराइज करो, या फिर प्रूफ रीडिंग करने के बाद मैंने कहा कि दूसरा बंदा प्रूफ रीड करेगा, फिर मैंने कहा फिर तीसरा बंदा प्रूफ रीड करेगा, फिर मैंने कहा चौथा बंदा प्रूफ रीड करेगा, और सबके पास 20-20 दिन का टाइम है। मतलब 20 दिन क्या हुआ मेरे यहाँ पे, 20 दिन मेरे यहाँ पे मेरे पास मेरा बैच साइज हो गया। अब वो बैच साइज है सबके पास विच सेम है 20, ठीक है, और 5 इपॉक्स हैं बिकॉज वी आर हैविंग 5 पीपल हेयर। अब हर बंदे के पास वो डाटा गया, ठीक है, प्रूफ रीड डॉक्यूमेंट आया, उसने गलतियां निकालनी सही करा, वो आगे चला गया, ठीक है। हर इपॉक में हमारे पास क्या होता है, लॉस रिड्यूस होता है। लॉस आया, उसको रिड्यूस करा, आगे दे दिया, आगे उस 20 डेज में उसने और लॉस रिड्यूस करा, उसने और आगे दे दिया, उसने और लॉस रिड्यूस कर दिया, उसने और आगे दे दिया, उसने और लॉस रिड्यूस करके दे दिया। अब क्योंकि मैंने 5 इपॉक्स डाले थे तो अब 5 इपॉक्स के जितना लॉस रिड्यूस हो सकता है वो मॉडल वर्क करा। कितना टाइम लगा उसको वर्क करने के अंदर, 25 फाइव 100 डेज लगे। 100 डेज के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। मैंने बोला कि हाँ भाई अब ये काफी बेहतर हो सकता है। ना फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह बात करें कि भाई अगर हम भाई 1 मिलियन इपॉक डाल देंगे तो क्या हमारा डाटा अच्छा काम करेगा, भाई बिल्कुल आपका डाटा अच्छा काम करे ना करे ये तो बात की बात है। लेकिन आपको डालने का फायदा क्या है 1 इपॉक, टाइम देखो आपका टाइम कितना बढ़ रहा है। अगर आपने ये देखा कि एक बंदे की वजह से 20 डेज बढ़ रहा है, एक लेमन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 20 डेज बढ़ रहा है, तो आपके प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स कितनी बढ़ रही होंगी बार बार आप अगर आप एक इपॉक से ज्यादा क्रिएट कर रहे होते हो। तो अब आपको इपॉक्स में और स्टेप की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि एक इपॉक के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जैसे एक बंदा 20 डेज लगातार मुख्तलिफ आइट्रेशंस करता रहा, मतलब पहले 2 पेज अलग कर लिए, फिर मतलब 50 पेज पहले एक दिन कर लिए, 50 पेज अगले दिन कर लिए, 50 पेज तीसरे दिन कर लिए। ये उसके स्टेप्स थे, ठीक है। विद मेंशन बैच साइज, बैच तुम्हारा 50 था, और नंबर ऑफ पीपल, जितने भी नंबर ऑफ पीपल ये प्रोसेस सबके थ्रू गुजरा, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ईपॉक्स कहलाएंगे, क्योंकि ये तमाम प्रोसेस एक ईपॉक में आ रहा है। अब हमारे पास मल्टीपल ईपॉक है एज डिपेंडिंग अपॉन द बैच साइज। नाउ आई होप दैट आई हैव मेड दिस क्लियर एंड हैव मेक सम सेंस, बिकॉज इससे ज़्यादा इसको मैं क्लियर क्या करूँ, आई डोंट नो। और अगर आप लोगों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो रही हो कि epoch में और क्या है, सो लेट मी नो ऑन डिस्कॉर्ड। मैं आज रात फ्री होऊंगा, सो यू विल गेट टू नो कि आपको विजुअलाइजेशन फॉर्म में बता दूंगा कि किस तरीके से epoch के अंदर और कैसा डिफरेंस होता है। बाय द वे, जो प्रूफ रीडिंग वाली एग्जांपल है, आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया हो, एकदम रैंडम लिया है एज हुमैरा सेट के, ये इट्स वेरी गुड एग्जांपल। आई होप कि इससे आपको बासानी समझ में आ गया हो। ऑलराइट, सो हियर लेट वी गो फर्दर। और यहाँ पे मैं देख लूँ किसी का सवाल और ना आया हो। Someone has said please speak slowly. I don't know. Okay, let me reduce my microphone voice. Guys, if I am speak a little bit higher, so let me know it. All right. और अगर किसी को कम लग रही आवाज़ तो बता दें। तो जिनके पास मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही हो तो वो फिर अपनी आवाज़ कम कर लें, बिकॉज मैं कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा हो जाता हूँ जज्बाती। जस्ट किडिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास लॉस फंक्शन और ग्रेडियंट्स हैं। द लॉस फंक्शन एंड द फंक्शन दैट कंप्यूट्स द ग्रेडियंट आर सेम एज बिफोर। Let's define loss MSE procedure which will return computed mean of elements across dimensions of a tensor. अब हमारे पास यहाँ पे जो n डायमेंशनल डाटा, ठीक है, अब डायमेंशन कितनी है हमारे पास, 2 डायमेंशन है, x और y। हमारे पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, रिमेंबर दैट। अब क्योंकि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर सिर्फ 2 ही डायमेंशन ही होती हैं, तो जाहिर सी बात है हमें तीसरी डायमेंशन से डील करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को मैंने देखा कि डिस्कॉर्ड पे W0 में और W1 में कंफ्यूजन थी, बहुत तरह के मैंने जवाब देके। आई आई कैन नॉट रीड दैट क्वाडकॉप्टर थिंग, वो भी चल रही थी डिस्कॉर्ड पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला मुझे अभी, क्योंकि मैं अभी तक स्टिल आई एम नॉट एट माय होम। जाके घर जाके देखूंगा, लेकिन लेट मी कन्फिगर क्लियर दिस कि क्यों कंफ्यूजन आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई। एंड आई लाइक द रिप्लाई ऑफ मारूफी, it was a wonderful reply done by Marufi on the weight and bias thing.
मुझे उनका रिप्लाई अच्छा लगा, मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। अच्छा ये तो ना थोड़ी सी स्लोप की इक्वेशन थोड़ी सिंपल होनी चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक हमारे पास स्लोप की इक्वेशन है। ठीक है, अब ये स्लोप की जो हमारे पास इक्वेशन है ना, आई होप गाइस यू प्रीटी नो कि हमारे पास रिग्रेशन की भी कोई ऐसी ही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्योंकि हर ग्राफ पे किसी लीनियर डाटा की ऐसी ही कोई इक्वेशन बनती है कि इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और कोई इसका एक वाई इंटरसेप्ट होगा जो कि बी होगा। ठीक है, देखो न्यूरल नेटवर्क के अंदर बायस अलग अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, और वेट्स बिल्कुल ही अलग होता है। तो रिग्रेशन में कहाँ से डिफरेंस आ रहा है? रिग्रेशन में कोई अलग नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपको कल क्या कहा था कि W0 और W1 में सिर्फ एक चीज का फर्क है। मैंने ऊपर इक्वेशन डाली, लेट मी सी दैट। वैसे मुझे इक्वेशन यहाँ पर डालनी चाहिए थी दोबारा से ताकि आप लोग थोड़ा दोबारा कंफ्यूज होते हैं, बट आई गेस आई हैव फॉरगॉटन टू डू दैट। ऑलराइट, सो नो प्रॉब्लम। तो वो आप खोल लीजिएगा गिटहब से ना, इक्वेशन खोलने, यहाँ मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। ओके, 2 मिनट लगेंगे, just 2 minutes. As far as GitHub will not take much time. All right, so here we go. तो ये भैया हमारी एक इक्वेशन थी जिसके अंदर सबको एक कंफ्यूजन हो गई। ओहो, ये वाली ना, ये हमारी एक वंडरफुल सी इक्वेशन थी, y हेड इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एक्स प्लस W1। अब कुछ स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ये दोनों चीजें वेट हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को पता है कि भाई ये नहीं, भाई ये वेट है और ये बायस है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ये बायस है तो बायस ट्रेनेबल क्यों है? भाई बायस भी तो एडजस्ट होता है, कल हमने एडजस्ट तो किया था बायस। आप लोग ये, कुछ लोग ये भूल गया कि बायस भी एडजस्ट होता है। ठीक है, फिर सेकंड चीज ये कि मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए कहा था क्योंकि अभी हम कोई कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि वेट्स और बायस बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे कर रहे होते हैं, जो कि मैं जैसे मशीन लर्निंग में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन है जो कि रिग्रेशन में फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोफेशनल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। इसको मैं कंपेयर कर रहा था इक्वेशन ऑफ स्लोप से, बिकॉज बोथ आर सेम, रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। हमारे पास एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स डेवलप हो रहा होता है और एक जो है बायस जो है कांस्टेंट डेवलप हो रहा होता है। अब ये बी, चलो बी भी बायस से एक तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, एम एक्स प्लस सी होता है बेसिकली ना, अगर आपने देखा हो, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे सी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बी क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इट्स लाइक एन बायस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप ये बोल दो कि यार ये बायस कैसे हो गया, ये तो बायस ही होना चाहिए था। ना, लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल इन दैट, कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वाई इंटरसेप्ट है, इसमें सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, सही। और ये हमारा एम एक्स है, एम एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास इनपुट है, और ये हमारे पास क्या है? स्लोप है, कोफिशिएंट ऑफ स्लोप है, ये स्लोप बोलें जो भी बोल रहे हैं। नाउ इफ आई शो यू द इक्वेशन ऑफ वेट्स, लेट मी शो यू दैट you will able be to compare it with this equation। आपको पता चलेगा जो आपकी क्लास 8 की जो इक्वेशन है, ये कितना आपका रोल प्ले कर रही है अगर उस वक्त अच्छी पढ़ ली होती। जस्ट किडिंग मैन। ओके, ये वैसे एक्चुअल इक्वेशन तो यही है, लेकिन उसको थोड़ा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में देख रहा हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर आपको ये समझ में आ जाए। तो हियर वी गेट इट, ऑलराइट। ये हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, यही इक्वेशन मैंने पहले दिन खोली थी। तो वो कुछ लोगों की बहुत अच्छी इंट्यूशन है इस रिगार्डिंग दिस। वाओ, दिस पिक्चर इज समथिंग प्रीटी ग्रेट। ये भी अच्छी खुल गई है और ये भी अच्छी खुल गई है। पिक्चर बनाने का टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं नेट से खोल के दिखा देता हूँ जब चीज़ नेट पे पड़ी है। सो व्हाट इज नीड टू मेक इट बाय योरसेल्फ। तो इनपुट वेट प्लस बायस वाई, ये क्या है हमारे पास? अगर आपको याद आए, हमारे पास वही स्लोप ऑफ इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। हमारे पास वही आ गया, कहाँ गया, यहाँ सॉरी, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स। ये हमारे पास x इनपुट है, वेट जो से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे उसकी जगह m लिखा हुआ था, और यहाँ पे b है। ठीक है, अब b यहाँ पे बायस के से रिप्रेजेंट कर रहा है और w यहाँ पे वेट से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको आप अगर ये समझ रहे हो कि ये c से रिप्रेजेंट क्यों नहीं होगा, तो c कांस्टेंट होता है। ठीक है, बट एक ही बात है, थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, हम अभी फिजिक्स की लैंग्वेज से बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी न्यूरल नेटवर्क की लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। एक
वेक्टर्स की लैंग्वेज में बात करें, वेक्टर्स की लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इस थोड़ा बायस और वेट को भी देखना पड़ता है। नाउ हियर दिस इज एब्सोल्युटली द वाई इंटरसेप्ट। मान लिया हमने कि भाई ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने मान लिया। नाउ हाउ दिस इज वेट, वेट कैसे हो रहा है, एंड हाउ आई कैन रिलेट दिस इक्वेशन, और आई कैन रिलेट दिस इक्वेशन टू दिस वन जो हमने यहाँ पे देखी, डब्ल्यू नॉट एक्स प्लस डब्ल्यू वन, क्या ये वही इक्वेशन है जो हमने मान दी? यस ब्रदर, दैट्स द सेम इक्वेशन। अगर आप देखो ये वेट कहाँ, मैंने बहुत सारी इक्वेशन खोल ली इसलिए आपको समझाने के लिए। ये z लिखा हुआ है ना, अज्यूम कर लो कि ये y है, ठीक है। ये z किस लिए लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बीच में एक्टिवेशन फंक्शन भी है, हमने एक्टिवेशन फंक्शन अभी अप्लाई किया ही नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि हम हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है ही नहीं, हमारे पास जैसे डाटा जिस तरीके से आ रहा है हमें बिल्कुल वैसे ही वाई हेड में डालना है। नहीं तो पूरा डाटा पूरा सबमिशन होता है, उसको फिर एक्टिवेशन फंक्शन में डालते हैं और फिर वो जाता है वाई हेड के अंदर। अभी हम डायरेक्ट अपना डाटा किस में ले रहे हैं? वाई हेड में ले रहे हैं, विदाउट यूजिंग एनी एक्टिवेशन फंक्शन, नेचुरल फॉर्म में। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स वन इंटू वेट वन प्लस एक्स टू इंटू वेट टू प्लस एक्स एन प्लस इंटू वेट एन। मीन्स क्या था यहाँ पे हमारे पास, कि हमारे पास चाहे एक इनपुट हो या मल्टीपल इनपुट हो, वो सब अपने अपने वेट से मल्टीप्लाई होंगे और उनके अंदर क्या ऐड हो जाएगा? उनके अंदर बायस ऐड हो जाएगा और फिर वो रिटर्न क्या हो जाएंगे? वाई में हो जाएंगे या जी में हो जाएंगे। फिर हमने वाई हेड बनाना होता है। अब हम डायरेक्ट ही इसको वाई हेड के अंदर करें, बिकॉज वी आर हैविंग जस्ट वन रीजन हेयर। लेट मी गो बैक टू दिस नोटबुक। क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और लीनियर रिग्रेशन में जब हमें पता है कि ना हमारा डाटा पॉलिनोमियल में जा रहा है, ना हमारा डाटा कर्व में है, कोई ना कर्वेचर बन रहा है, ना हमारे डाटा के अंदर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी है, सिर्फ लीनियर क्वालिटी है हमारे डाटा की, तो फिर हमको उसमें कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके हम डाटा की नेचर को चेंज कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नीड टू डू इट। तो चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा। लॉस फंक्शन एंड ग्रेडियंट्स को थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। जो हमने कल काम करा, हमने लॉस एमएससी डिजाइन करा, यहाँ पे हमने एक्स और वाई डाल दिया, डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन डाल दिया, वाई हेड की इस इक्वेशन को दोबारा रिकोड कर दिया, डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू वन। और एरर्स के हमारा लॉस फंक्शन जो था वो वाई हेड माइनस वाई इन स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ऊपर, अगर यहाँ नहीं लिखी हुई तो यहाँ तो जरूर लिखी हुई होगी। अब ये चीज़ें रोज रोज तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा सकूंगा मैं, क्योंकि एक दफ़ा मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब आप उसको गिरफ्त में ले लें, क्योंकि अब हम ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट बस एक फंक्शन बनाएंगे और जस्ट सॉल्व इट। यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हेड वाई माइनस वाई इसका स्क्वायर आ गया, और फिर इसका ये मीन जो था वो भी यहाँ बन रहा है। तो इधर आप देखोगे तो इधर भी हम यही काम कर रहे हैं। ये हम ज़्यादा नीचे आ गए शायद, ये रहा। तो यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं। देन एट द एंड वी आर रिटर्निंग इट्स रिड्यूस्ड मीन। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? लेट्स डिफाइन कंप्यूट ग्रेडियंट्स प्रोसीजर व्हिच विल रिटर्न वैल्यू ऑफ रिकॉर्डेड ऑपरेशंस फॉर एरोमेटिक डिफरेंशिएशन। डेफ कंप्यूट ग्रेडियंट्स, हम यहाँ पे ग्रेडियंट्स कंप्यूट कर रहे हैं बाय यूजिंग टी आउट ग्रेडियंट टेप जो हमने कल किया था, बाय यूजिंग लॉ। अब हमारे पास लॉस फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन चाहे आपकी कोई भी हो, ठीक है, एक हमेशा ये चीज़ याद रखना कि फॉर एग्जांपल किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम अगर हमको याद हो, मैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो मशीन लर्निंग पढ़ा, या फिर आगे जाके आपको मैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम या स्टोकेस्टिक या आलम, जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती हैं, दे डिपेंड ऑन मेनली टू थिंग्स। एक तो आपका होता है लर्निंग रेट, और दूसरा आपका क्या होता है कि आपका लॉस फंक्शन कौन सा है। हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में सबसे परफेक्ट लॉस फंक्शन आज तक जो डिजाइन हुआ है वो मीन स्क्वायर्ड एरर डिजाइन हुआ है। तो हम मीन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू लॉस फंक्शन जो है, लॉस जो है अपना जनरेट कर रहे होते हैं कि हमारा लॉस कितना है। तो जितना हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर कम आएगा उतना ही हमारा मतलब डाटा हमारा एक्यूरेट प्रिडिक्ट हो रहा है। नाउ वन मोर थिंग, कि एक तो हो गया मीन स्क्वायर्ड एरर, दूसरा हमारे पास क्या हो गया मीन स्क्वायर्ड एरर के अलावा लर्निंग रेट। लर्निंग रेट जस्ट फॉर स्टेप्स कि आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन न लें और बहुत छोटे छोटे डिसीजन न लें, आप इतने मॉडरेट डिसीजन लें कि आप उसको कवर अप कर सकें। तो ये हम जब फिजिकल एप्लीकेशन करेंगे इसकी, तब भी मैं आपको इसको और से समझा दूंगा। और तो मुझे पता है आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेट मी सी सम क्वेश्चंस देयर। All right, Muhammad Ali said कि kindly
change the variable name here and the bias shift. Okay, yes, तैयब you are right. तैयब का एक वो था ओपिनियन था, ये बताना चाह रहा था मुझे, बट दैट्स एब्सोल्युटली राइट कि बायस की वजह से आपका पूरा का पूरा प्लेन शिफ्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग योर दिस प्लेन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, अगर आपका बायस ऐड कर दोगे ना तो फिर आपका प्लेन यहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक यहाँ से. अगर आपने 2 एटम्स और ऐड कर दिए तो आपका प्लेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा. आपने 5 एटम्स और ऐड कर दिए तो आपका प्लेन स्टार्ट यहीं से हो रहा होगा, बनेगा लीनियर ही. ठीक है ना. तो बायस का ये इम्पैक्ट पड़ता है. ऑलराइट, अच्छा, मोहम्मद अली ने कहा कि इसको इक्वेशन के चेंज कर दें. देखिए, मैंने चेंज इसलिए नहीं करे क्योंकि मैं चेंज करना ही नहीं चाहता. मैं चाहूँ तो उसको मैं चेंज कर दूं, लेकिन फिर आगे जाके मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन बढ़ जाए आपके लिए. डॉक्यूमेंट जो डीप लर्निंग की डॉक्यूमेंटेशन है ना जगह जगह, वहाँ पे यही काम हो रहा है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई यहाँ पे बेसिकली वाई हैड इज इक्वल टू मशीन लर्निंग के वक्त तो भाई उस वक्त तो मैंने बहुत हल्का तरीके से पढ़ा रहा था, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल पे नहीं था हम लोग. तो आपको लग रहा होगा कि उस वक्त भी प्रोडक्शन लेवल पे इस वक्त नहीं थे, लेकिन उस वक्त में फ्लेक्सिबल था. अभी मेरा बिल्कुल टारगेट इंडस्ट्रियल लेवल है कि आप लोगों को समझ में आए कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है, क्या है. और मैंने यहाँ पे फिर वही काम कर दिया, सॉरी, किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ये मैंने आयु कर दिया. यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मैंने वेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बायस कर देता हूँ. ठीक है. इसको असल में इस तरीके से बायस, लीनियर रिग्रेशन में ना इस तरीके से बायस बोला जाता नहीं है, तभी यहाँ पे इसको बायस नहीं लिखा हुआ. ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, या पे इसको कांस्टेंट कहते हैं. इसको अब बायस हम कहते ही नहीं है इन अ गुड प्रैक्टिस. कह दोगे तो कोई बुरा भी नहीं बोलेगा, लेकिन उसको गुड प्रैक्टिस में बायस बोलते ही नहीं है. ऑलराइट, हमने ऑप्टिमाइज टेक्निक जनरेट कर ली है, हमने लॉस फंक्शन जनरेट कर लिए. नाउ लेट्स कम टू द ट्रेनिंग लूप. हमारा काफ़ी हद तक काम हो गया है, उसके बाद थोड़ा सा लगे अच्छा खासा रहता है. बस आई मीन कोई खड़ी आई एम टू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ समझ में आ जाए आप लोगों के. Now training loop here, the main difference now is that now in the training loop, we'll iterate directly on the tier2 data set generated by create data set function. जितना भी हमने काम किया ना पीसीस के अंदर, अब हम सबको एक साथ में डाल देंगे. हमने डिफाइन कर दिया है हमारा बैच साइज क्या है, 2 है. हमारे इपॉक्स कितने होंगे भाई, 250 होंगे. अब ये चीज़ कोर्स देख लेना. लर्निंग रेट क्या होगा हमारे पास, 0.2 होगा. ठीक है. और ये हमने यहाँ पे वही कल वाला जो मैसेज था मैंने बना के फिर डाल दिया, स्टेप माइनस लॉस, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा क्या ट्रेनिंग क्या होगा, स्टेप क्या है, लॉस क्या है. नहीं तो आपको बताएगा थोड़ी वो ट्रेन हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपको लॉस क्या है, क्या क्या बन रहा है. ठीक है. अच्छा, लीनियर क्लास के अंदर भी अगर आप आगे जाके काम करेंगे सिक्वेंशियल उस पे फंक्शनल एपीआई पे, तो क्लास के अंदर भी क्या होता है जब आप लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करोगे इसके थ्रू, उसके अंदर भी क्या होगा कि बेसिकली जब भी लीनियर रिग्रेशन खास तौर पे उस पर काम कर रहे होगे ना, तो देर आर सो मेनी सिक्वेंशियल एपीआई के उसके दौरान जब इनिशियल वेट्स जो आपके असाइन होते हैं वो जीरो ही होते हैं. कुछ एल्गोरिथम के अंदर रैंडमली असाइन हो जाते हैं, बाद में वो चेंज होते हैं, लेकिन इसके अंदर जीरो असाइन होते हैं. तो हमने भी यहाँ पे जीरो ही असाइन किए. एंड जीरो हैव प्रूवन द गुड एंड नाइस प्रैक्टिस के जीरो, अगर हमारा डाटा जीरो पे होना तो हमारा डाटा जल्दी जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाता है. लेकिन अगर आपका डाटा बीच ड्यूरिंग द ईपॉक्स, मतलब आपका आपने रखे हैं 500 ईपॉक्स, और बीच में आपके वेट्स अगर जीरो हो गए ना, कहीं गलती से भी जीरो हो गए, तो आपका पूरा का पूरा जो न्यूरल नेटवर्क होता है ना वो जीरो हो जाता है. और जब आपका न्यूरल नेटवर्क जीरो हो जाता है ना, तो आपका न्यूरल नेटवर्क या तो कंफ्यूज हो जाएगा या फिर डेड हो जाएगा. मतलब क्या कि भाई अगर आपके वेट भी जीरो और बायस भी जीरो, तो मतलब वाई भी जीरो, आपका आउटपुट भी जीरो. जब आपका आउटपुट जीरो तो वो आगे जाएगा तब भी वो जीरो, तब भी वो जीरो, जीरो 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 जीरो, आपका पूरा एल्गोरिथम जीरो हो जाता है. एंड दैट रिटर्न्स इन अ कन्फ्लिक्शन. उस सूरत हाल में इन डिपेंडिंग अपॉन सम डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा, हमें मॉडल को कस्टमाइज भी करना पड़ जाता है. खैर ये बहुत एडवांस लेवल की बात है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एक दफ़ा ये ज़ीरो होता है, उसके बाद ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते इसके अंदर. ठीक हो गया. ऑल राइट, सो जस्ट रिमेंबर दैट कि डब्ल्यू नॉट जो हमारे पास ये ये हमारे पास वेट है, और डब्ल्यू वन जो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, या बायस कह लें या कॉन्स्टेंट कह लें, जो भी आपको दिल करे आप कह लें. देन वी आर हैविंग हेयर डेटा सेट इज इक्वल टू की डेटा सेट जो हमने ऊपर बनाया था.
एक्स मेंशन कर दिया हमने, यहाँ पे वाई मेंशन कर दिया, इपॉक्स मेंशन कर दिया, बैच साइज मेंशन कर दिया। चलो भाई हमारा डाटा जनरेट हो गया है। डेटा सेट जनरेट होने के बाद now what we gonna do here for step x batch y batch in enumerated data set। अब ये यहाँ पे हमने कहाँ से लिखा है x बैच या y बैच? तो ये फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आपके पास डाटा सेट आया, मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक दो कोल्ड ड्रिंक के क्रेट हैं, एक में ऑरेंज है एक में ब्लैक है। अब मुझे एट अ टाइम दोनों चाहिए, लेकिन दोनों चाहिए तो हैं, लेकिन एट अ टाइम मुझे दोनों में दो दो चाहिए। देखो समझने की कोशिश करना, या तो होगा कि लूप हमारा चल रहा है, ठीक है, अब लूप हमारे पास चल रहा है लेकिन हम उसके अंदर क्या कर रहे होंगे, हम जा रहे हैं और एट अ टाइम ना एक ही बॉटल उठा रहे हैं हर स्टेप पे ना, दोनों में से अगर हम ट्यूपल पे फॉर्म कर रहे हैं हम दोनों में से एक ही बॉटल उठा रहे हैं। लेकिन अभी हमने क्या करा, हमने बोला बैच साइज, ताकि हमारे पास अब बैच साइज स्पेसिफाई कि मैं एट अ टाइम जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा बैच साइज 2 है, तो मैं अपने एक हाथ से दो बोतलें उठाऊंगा, चाहे वो ब्लैक में भी उठाऊं और ऑरेंज में भी उठाऊं, तो दो बोतलें एट अ टाइम मैं दोनों में से उठाऊंगा। तभी मैंने उसको यहाँ पे एक्स बैच और वाई बैच से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैच साइज रिप्रेजेंट कर दिया ना। वैसे अगर आप उसको एक्स भी वाई भी कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्योंकि एक्स बैच चल रहा है ना ऑलरेडी, तभी मैंने नहीं करा, मैंने इसको एक्स बैच और वाई बैच कर दिया। हमारे पास बैच साइज के अंदर डाटा इस पे आइटरेट होगा, किस पे, डाटा सेट के ऊपर। दिस इज द सेम कोड जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं स्मॉल एस वाई ले लिया था, यहाँ पे हमने कैपिटल एक्स वाई के बाद हमने बैच लिख दिया था कि उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये वही चीज़ है, डोंट ये पैनिक हियर। अच्छा, यहाँ पे हमने अपने एडजस्टेड वेट मेंशन कर दिए कि अब हमारे वेट जो होंगे ना वो यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूट होंगे। अब आपके सवाल होगा भाई एक्स बच वाई बच आया कहाँ से? भाई यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हैं। अब इन वेरिएबल के अंदर करंट वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज और एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास करंट एक्स बैच क्या है या वाई बैच क्या है, डब्ल्यू नॉट क्या है, डब्ल्यू वन क्या है हमारे पास, उनके मुताबिक हमारे पास कंप्यूट ग्रेडियंट्स, जो ग्रेडियंट होगा हमारा वो कंप्यूट होगा, और उसके मुताबिक हमारे एडजस्टेड वेट जो होंगे किस में जाएंगे, डी डब्ल्यू नॉट में और डी डब्ल्यू वन के अंदर चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये आ जाएंगे विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग रेट, हम किस में असाइन कर देंगे उसको, दोबारा से अपने डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन में असाइन कर देंगे। जब हम डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू वन में असाइन कर देंगे ना, तो जब ये लूप दोबारा आइट्रेट होगा ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू नॉट के अंदर डब्ल्यू वन के अंदर एडजस्टेड वैल्यूज ही आएंगी। तो वो एडजस्टेड वैल्यूज दोबारा जब जाएंगी इस कंप्यूट ग्रेडियंट्स के अंदर, तो वो री एडजस्ट होकर आएंगी जिस तरीके से हमने कल काम परफॉर्म किया था। आई होप कि आपने कल सबकी प्रैक्टिस कर ली हो तमाम सेल्स की, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आराम से आ रही होगी। कभी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो एक एक चीज़ को अलग अलग कॉपी करके पेस्ट करके रन करके देखा करें। 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, बट एट द एंड यू विल फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट इन दैट डिसिप्लिन। सैटरडे संडे का गैप होगा, सो आई एम प्रीटी श्योर कि जब हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हो, सो यू विल फील कॉन्फिडेंट योर सेल्फ इन टेंस ऑफ लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब कुछ काम हो रहा है, ये तो हमने काम करा है सब अपने उसके लिए कि जब हमारे 100 स्टेप्स हो जाएंगे ना, जब जब हमारे 100 स्टेप होंगे तो हमारे पास जो होगा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या लॉस है और क्या हमारा डब्ल्यू नॉट चल रहा है और क्या हमारा डब्ल्यू वन चल रहा है, हमारे पास वो प्रिंट होता रहेगा। अब हमारा हमें पता है कि हमारा डब्ल्यू नॉट जो है 2 बनना चाहिए और हमारा डब्ल्यू वन जो है क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। सो लेट्स सी, ये हमने सब एक्सेप्शन के लिए रखा हुआ है कि अगर हमारा लॉस इससे भी नीचे आ जाए और मतलब बिल्कुल, और अगर हमारा जो डब्ल्यू नॉट है -2 करने के बाद इससे भी नीचे चला जाए, और अगर हमारा डब्ल्यू वन -10 करने के बाद इससे नीचे चला जाए, इनकी ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन जस्ट अ प्रोफेशनल वर्किंग वे। ऑल राइट, तो अच्छा, इसकी वजह ये भी होती है मेंशन करने की क्योंकि हम कस्टमाइज बना रहे हैं ना, तो जैसे ही 10 अचीव होगा ना हमारे पास और डाटा अब 10 से बढ़ने लग गया है, थोड़ा सा भी 10 से अगर डाटा बढ़ेगा ना तो वो वहीं रुक जाएगा। जहाँ रुक जाएगा ना हमें ये पता चल जाएगा कि वो किस इपॉक पे रुका है, फिर हम उतने ही इपॉक के मुताबिक डाटा को ट्रेन करेंगे। लेकिन 12,000 स्टेप्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो डाटा अचीव है वो 9.9991122, मतलब 4 दफ़ा 9 है फिर 122 इतना, एंड इट्स गुड। ठीक है ना, यहाँ पे 2.000015 ये निग्लिजिबल अमाउंट हो गई है काफ़ी, और ये भी मतलब जो है 4 डिजिट छोड़ के निग्लिजिबल अमाउंट हो गई है।
तो ये 10 अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये 2 अचीव हमें हो चुका है ऑलमोस्ट, और हमारा लॉस भी ना बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो हमारी इक्वेशन अच्छी काम कर रही है। नाउ लोडिंग डाटा फ्रॉम डिस्क, अगर फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन इंटीजर बेस्ड होगी ना कभी भी, तो फिर हम उसको इंटीजर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जब राउंड करने पे ये 2 और 10 अपने आप बन जाएगा, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब तक जो हम काम कर रहे थे, वी वर लोडिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी हियर, देन नाउ वी गोना लोडिंग डाटा फ्रॉम डिस्क। यूज TF डॉट डाटा टू रीड द CSV फाइल्स। हम ये काम पांडास से भी करते हैं, आपको याद होगा कि हमने ये काम किया है पांडास से, लेकिन अब हम काम करेंगे CSV फाइल्स के ऊपर। दैट्स अ रियल डेटा सेट, लेकिन इतना भी खास नहीं है, बट इट्स अ रियल डेटा सेट। तो यूज TF डॉट डाटा API can easily read CSV file using the helper function tf.experimental.make CSV dataset। अब ये क्या बोल रहा है कि ये CSV फाइल ना बड़ा आसानी से कॉपी कर सकते हैं, इसका एक हेल्पर फंक्शन होता है जिसका पूरा जो एट्रीब्यूट मेथड के साथ जो नाम है फंक्शन वो ये है। इसको अगर आपको मजीद स्टडी करना हो, जस्ट सिंपली कॉपी दिस फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया लिंक, एंड सर्च ओवर हेयर, और यहाँ पे आप इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल्स हो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई C++ वो C++ में भी पढ़ ले पहले से, वो जावा के अंदर भी पढ़ ले, वो किसी भी चीज़ में पढ़ ले, उसको सब में मिल जाएगी। ठीक है, दिस API इज depreciated and will remove in a future version of TensorFlow after replacement and stable। जावा के अंदर ये डेप्रिशिएट हुई है, लेकिन पाइथन में अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये डिफॉल्ट पे आ गया, बट डोंट वरी। तो मतलब पाइथन C++ और पाइथन पे तो टेंसरफ्लो C++ पे और पाइथन पे तो काफ़ी जो है ना प्रॉपरली वर्क कर रही है, अपडेटेड रहती है काफ़ी। अच्छा, इफ यू हैव TF रिकॉर्ड विच इज रिकमेंडेड, यू मे यूज TF डॉट डाटा एक्सपेरिमेंटल में बेस्ट फीचर डाटा सेट। देखते हैं भाई हम, मैं जो हूँ यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास CSV फाइल्स हैं, लेकिन उनके अंदर कॉलम्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे फाइल्स देखो तो उनमें कॉलम्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कॉलम्स जहाँ से भी डाटा सेट आप उठाओगे वहाँ पे मिल जाएंगे, अगर किसी चीज़ में भी कॉलम मेंशन नहीं करे होंगे। ठीक है ना, तो ये डाटा सेट मैं आपको दे रहा हूँ, और मैंने आपको बता भी दिया कि भाई इसे कॉलम ये है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं कॉलम्स की नेम की जो लिस्ट है ना वो यहाँ पे भी, ये तो बहुत बड़ा डाटा सेट है, स्क्रॉल अप करते ही सुबह हो जाएगी। तो मैं कॉलम्स की नेम भी यहाँ डाल दूंगा, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, बार बार ये खोलना, कोई कुछ देखना ना पड़े। बट नाउ हेयर, कहाँ गया, नाउ हेयर CSV कॉलम इज इक्वल टू फेयर अमाउंट। यहाँ पे मैंने सारे कॉलम में मेंशन कर दिए हैं। मतलब पहला कॉलम फेयर अमाउंट का है, फिर पिकअप डेटा टाइम का है, फिर पिकअप लॉन्गिट्यूड का है, फिर पिकअप लेटीट्यूड का है, फिर ड्रॉप लॉन्गिट्यूड का है, फिर ड्रॉप लेटीट्यूड का है, पैसेंजर काउंट का है, और ये की है। अब थोड़ा मतलब बता देता हूँ कि भाई कितना उसका फेयर अमाउंट बना, क्या किस दिन उसको पिक किया, डेट क्या थी, टाइम क्या था, कहाँ से पिक करा, पिकअप लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड आ गया, कहाँ उसको ड्रॉप किया है, और कितने पैसेंजर्स थे, और फिर हमारे पास की भी आ गई। मतलब ये एक यूनिक की जो भी है वो आ गई। अब उस यूनिक की का हमें वैसे कोई फायदा नहीं है, सो वी कैन रिमूव दैट एज वेल, बट वी सी कि क्या होता है। ओके, लेबल कॉलम इज इक्वल टू फेयर अमाउंट। ठीक है, हमारे पास ये लेबल कॉलम है, क्योंकि हमें इट्स गोइंग टू बी लाइक कि हमारा फेयर कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर हमें ये मालूम करना। now defining the default values into a list defaults, डिफॉल्ट में हमने एक ये हमने डिफॉल्ट वैल्यूज जनरेट कर लिए जस्ट एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये हमने काम क्यों करा है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ, डोंट वरी, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त समझ में आ जाएगा। ठीक है, let's now wrap the cell to make CSV dataset to its own function that will make only the file pattern where the dataset files are to be located। नॉन डिफाइन क्रिएट dataset, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पैटर्न, जो भी हमारे डाटा आ रहा है उसको मैं नाम दे दिया पैटर्न। ठीक है, रिटर्न TF डॉट डाटा एक्सपेरिमेंटल डॉट मेक CSV dataset, जो मैंने ऊपर फंक्शन लिखा था ना ये वही काम है। पैटर्न आ रहा होगा हमारे पास, हमने यहाँ पे लिख दिया CSV कॉलम्स, फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डिफॉल्ट्स। अब इसमें तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अभी डिफ़ॉल्ट क्या है, CSV कॉलम क्या है, ये पैटर्न क्या है। अगर आप मशीन लर्निंग, अगर आपको आज तक आपको पता होगा कि एक हमेशा एक डाटा सेट के अंदर एक कॉलम हमारे पास डिफ़ॉल्ट का होता ज़रूर है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सो डोंट वरी, अभी हम उसको समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, हमने हमारे पास यहाँ पे डाटा सेट क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी डाटा सेट का काम क्या होगा हमारे पास जब क्रिएट हो रहा है, बाई यूजिंग दिस API, आई विल टेल यू इन कमिंग सेल्स।
ना टेम्स हमें बना दिया है विद यूजिंग क्रिएट डाटा सेट। हमारे पास यहाँ पे टेम्पररी एक डाटा सेट डेवलप हो रहा है जो कि किसके लिए हो रहा है, जस्ट फॉर सम अदर काइंड ऑफ वर्क। हमारे पास एक डाटा सेट यहाँ पे भी आ चुका है। ऊपर लिया हमने नहीं लिया, चलो अच्छा यही लिया हमने क्योंकि हम फर्स्ट टाइम डाटा सेट यही ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम डाटा सेट यहाँ पर आ गया और हमने लोकेशन पास करा दी है। अब ये जो मेरी लोकेशन है ना, ये आप लोगों के पास नहीं चलेगी, आप अपनी ही डायरेक्टली डालिएगा जहाँ पर आपके पास डाटा है। मेरे पास डाटा यहाँ पे है तो मैं यही डालूंगा। देन लेट्स आउटपुट द वैल्यू ऑफ टाइम ds। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा ना तो यहाँ पे आ रहा है प्री फेच डाटा सेट ऑर्बिट डिक्शनरी फेयर अमाउंट 1 पिकअप डेट टाइम 1 पिकअप लॉन्गिट्यूड 1 पिकअप एल्टीट्यूड 1 ड्रॉप ऑफ लॉन्गिट्यूड 1 ड्रॉप ऑफ एल्टीट्यूड 1 पैसेंजर कोड 1 की 1 टाइप्स ऑर्डर डिक्शनरी फेयर अमाउंट टी डॉट फ्लोट 32। फिर यहाँ पे सबकी टाइप्स आ गई और पता नहीं क्या 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 ये हमारे पास ना सब कुछ इधर जनरेट होकर आ रहा है। अभी जो बेसिकली हमें वन मेंशन किया है ना, मैंने कहा कि हमें सिर्फ पहली वो चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ एक का आ गया। दैट इज व्हाई वी हैव मेंशनड वन हियर। लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। होप ठीक हो गया। हाउ लर्निंग रेट इज कैलकुलेट। देखो लर्निंग रेट हमें खुद से जूम करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट नहीं होता। ज़्यादा भी लंबा भी नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी रखना नहीं चाहिए। ऐसी टेक्निक में न्यूरल नेटवर्क को समझाऊंगा जब हम लोग CNN RN पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा कम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क डेवलप नहीं कर रहे, लेकिन मॉडरेट रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रख दोगे ना तो डाटा सेट आपको बहुत मतलब अपना वेट हरकत करने लग जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप 1.0 भी नहीं रख सकते और 0.00000001 भी नहीं रख सकते, ठीक है। मैक्सिमम लर्निंग रेट 1.0 होता है। क्यों? क्योंकि 1.0 का मतलब है कि तमाम सैंपल्स को एट टाइम आइटरेट कर लेगा, तो वो तो बिल्कुल वेट होता है। इवन तो 0.1 भी कभी कभी वेट होता है कि आप एट अ टाइम आप 10% सैंपल्स को एक साथ आइटरेट कर रहे हो, क्योंकि हर दफा इतने ही सैंपल्स को ना जंप करेगा। Alright, so now there is a pre-fetched dataset where each element is an ordered dict whose keys are the feature names and whose values are the tensors of shape। चलो देखते हैं भाई मैंने यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करी है। लेट्स अच्छा, आज की पूरी वर्कशॉप में ना कुछ मुश्किल नहीं था, आज की वर्कशॉप में सिर्फ ये एक फंक्शन मुश्किल है, ठीक है। आज की पूरी वर्कशॉप सिर्फ इसी एक फंक्शन में टिकी हुई है जो कि शुरू अब हुआ है। Alright, so now there is pre-fetched dataset where each element is an ordered dict whose keys are the feature names and whose values are tensors of shape. Let's iterate over the first two elements of the dataset using dataset.take2, then convert them ordinary Python dictionary with numpy array as values for more readability। चलो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़े रीडेबल फॉर्मेट में नहीं आ रहे थे, तो हम इसको थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट बनाते हैं। चलो कैसे बनाएंगे? हमने डाला फॉर डाटा इन टर्म्स। अभी चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या बोल रहा है? टाइम टीएस इज नॉट डिफाइंड। अरे मैंने कितनी दफा रन कर दिया इसको, ये रन नहीं हुआ अभी तक। ऑलराइट, अब ये हरकत नहीं होगी बिल्कुल। now for data in terms dot take two pb print हमारे पास हमने प्रिंट कर दिया क्या? अब ये pb print बेसिकली होता है फॉर ब्यूटीफुल प्रिंट के लिए या पाइथोनिक प्रिंट के लिए हम इसको ये काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या डाटा था? के है हमारे पास, ठीक है। v डॉट numpy फॉर के v इन डाटा टाइम्स, और ये हमारे पास जो है बेसिकली वो है मेथड कह लो। अब ये जो है ना सबसे मुश्किल कहानी है जो आपको समझनी है थोड़ा सा टाइम लगा के। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें बेसिकली जो हमारा मेन था ना वो था डेटा सेट डॉट टेक टू। हमने मेंशन कर दिया कि हमें टेम डॉट टेक टू में से सिर्फ एक ही, हमें दो चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैंपल जो है दो चाहिए, कुछ भी आप कह दो, टू एलिमेंट्स चाहिए, जो भी है हमें दो चाहिए फॉर एग्जांपल। तो हमने बोल दिया कि हमें टू एलिमेंट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल टू रोज चाहिए या टू सैंपल चाहिए, तो हमने टू मेंशन कर दिया। हमने यहाँ ब्यूटीफुल प्रिंट लगाया, पीपी प्रिंट पाइथोनिक प्रिंट के लिए। हमने यहाँ मेंशन करा है एक तरीके से, इसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो हमने के, अब ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है ना ये यहाँ पे चल रही है, देख रहे हो इधर, ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट नहीं है के, क्योंकि ये डिक्शनरी बनाई है हमने। पीपी प्रिंट हम करते हैं डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए, या मुख्तलिफ और काम भी होते हैं, ठीक है। तो हमने डिक्शनरी को प्रिंट करना था यहाँ पे। अब डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये की है, उसकी ये की बता रही है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बता रहा है कि हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या काम हो रहा है।
हमने बोला क्या चाहिए हमको, हमें चाहिए v डॉट numpy फॉर k v इन डेटा डॉट आइटम्स। अब 4k क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो की होगी ना वो इसकी की भी यूनिक होगी, तो यहाँ पे हम दोनों में सेम वेरिएबल लिखेंगे ताकि दोनों के अंदर वो आइटरेट साथ हो रहा हो, ताकि अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा हो, ठीक है। फिर v हमने क्यों लिखा, v के अंदर बेसिकली वो तमाम वैल्यूज होंगी कि जो हमारे पास सारे जवाब आ रहे हैं ना टेंसर के फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, ये हमारे पास टेंसर जो होगा इस v के अंदर आइटरेट हो रहा होगा। और फिर जब हमने यहाँ पे v डॉट numpy लिख दिया तो एट अ टाइम हमारे पास जो प्रिंट होगा ना सिर्फ वो v डॉट numpy ही प्रिंट हो रहा होगा। तो हमारे पास पहले पहला वाला टेंसर प्रिंट हो गया, उसके बाद हमारे पास दूसरा टेंसर प्रिंट हो गया, और हम यहाँ देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से हमारे पास numpy की फॉर्मेट के अंदर हमारे पास numpy की मॉड्यूल की वजह से हमारे कितने खूबसूरत तरीके से ये डिक्शनरीज प्रिंट हो चुकी हैं। ऑल दैट आई नो कि ये हमारे पास ये एरे की फॉर्मेट रिटर्न हुआ है। फॉर एग्जांपल ड्रॉप ऑफ लेटीट्यूड हमारे पास क्या है, ये एरे में आ रहा है। ड्रॉप ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है हमारे पास, ये भी एरे में आ रहा है। हमारे पास तमाम आंसर एरे के अंदर ही आ रहा है, बट स्टिल इट्स रीडेबल, चाहे फिर वो ये टाइम ही क्यों ना हो, वो रीडेबल जरूर है। ऑल राइट, कमिंग डाउन, हम लोग काफी एंड पे पहुंच गए हैं वैसे, सो वी गोना एंड दिस सून। 9:30 पे एंडिंग है, सो एंड इट्स गोइंग टू बी एट सेम टाइम इंशाल्लाह। Transforming the features. What we really need is a dictionary of features plus a label. So if we have to do two things to the above dictionary, remove the unwanted column key, keep the label separate from the features. Let's first implement a function that takes as an input a row, represented as an ordered dictionary and a tf data set as above, and then returns a tuple with two elements. The first element being the same order date with label drop, the second element being the label itself fair amount. ये पढ़ने का सारा मटेरियल है कि हम यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है ना। तो अगर कभी हम भूल जाओ तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई होंगी मैंने। फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 5 to 6 वर्कशॉप ये मैं करता रहूँगा ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। Note that we need to also remove the key and pick up date time column which we don't use. अब यहाँ क्या काम हो रहा है भाई, मैंने अब जैसे आपको याद हो पहले कि हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो अनवांटेड कॉलम जो होते हैं ना रिमूव कर देते हैं, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होता। ठीक हो गया। अब अनवांटेड कॉलम हमारे पास कौन सा आ रहा है भाई, एक की है, और पिकअप डेट टाइप क्या है, वजह से कोई फॉर एग्जाम्पल सरकार नहीं है कि किस दिन पिकअप हो रहा है, तो मैंने पिकअप डेट टाइम कर दिया, उसको अनवांटेड कॉलम कर दिया। नाउ लेट्स डिफाइन द फीचर्स एंड लेबल्स मेथड। चलो हमने यहाँ पे एक डिफाइन करा अपना कस्टम मेथड जो कि फीचर्स और लेबल्स के लिए होगा। तो हमने क्या करा, लेबल कौन से होंगे, हमारा रो डेटा डॉट पॉप लेबल कॉलम। इससे हमारे पास क्या हो रहा होगा कि हमारे पास जितना भी डेटा होगा ना उसके ये जितने भी लेबल कॉलम्स होंगे वो सब हमारे पास इसमें पॉप हो रहे होंगे, किसमें, लेबल के अंदर। अब पॉप का क्या मतलब है, अब आप बोलोगे यार ये क्या, ये कुछ जगह पे पॉप का मतलब होता है कि उसमें से निकाल देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि उसके उस डाटा में से वो रिटर्न करके कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास लेबल में आ जाएगा। जो उसमें जो भी जितने भी डाटा होंगे ना तो वो उसमें रिटर्न कर देगा, लेकिन जो हमारे पास डाटा सेट होगा ना उसमें से वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, बट डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, हमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी आखिर में, क्योंकि हमने टेस्ट ट्रेन और वेरिएंट अलग अलग बना रखे हैं। तो लो डाटा डॉट पॉप किया, लेबल कॉलम हमारे पास कहाँ से आ गए, जो कि हमने ऊपर ट्रेन कराए थे, ट्रेन नहीं कराया था, बस मेंशन कर दिया था, ये रहा लेबल कॉलम फेयर अमाउंट। तो हमारे पास ये कहाँ पे आ जाएगा, मेंशन होके लेबल्स में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, फीचर्स इज इक्वल टू रॉ डाटा। अब फीचर्स इज इक्वल टू रॉ डाटा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जितना भी डाटा था ना हमारा वो सब फीचर्स में हमारे पास आ गया। अब ये काम हमने क्यों करा इस तरीके से, मतलब रॉ डाटा तो खैर इसका कस्टम नेम है, डाटा सेट का नाम हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मशीन लर्निंग में करते थे कि डाटा सेट के अंदर से एक्स अलग करते थे और वाई अलग करते थे, फीचर्स अलग करते थे और फीचर्स अलग करते थे, और क्या होता है भूल गया, देखो मैं खुद भूल गया हूँ। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज अलग करते थे। तो अभी हम यही काम कर रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट अलग कर रहे हैं, आउटपुट अलग कर रहे हैं और फीचर्स को अलग कर रहे हैं। हमने पॉप के ज़रिए क्या करा, डाटा सेट के अंदर से वो निकाल के लेबल्स में ट्रांसफर असाइन कर दिया और उसके अंदर से वो रिमूव कर दिया, क्या कहते हैं, डाटा सेट के अंदर से डाटा सेट रिमूव कर दिया। और जो बाकी डाटा सेट था वो हमने किस में असाइन करा दिया, फीचर्स में असाइन करा दिया। फिर मैंने बोला फॉर अनवांटेड कॉलम इन अनवांटेड कॉलम्स,
ठीक है। अब ये अनवांटेड कॉलम एज एन इंडेक्स काम कर रहा है किसमें, इसमें। अब हमारा कौन से अनवांटेड कॉलम्स थे, ये दो थे, पिकअप डेट टाइम और की। मैंने फंक्शन डाल दिया फीचर्स डॉट पॉप अनवांटेड कॉलम, तो फीचर्स के अंदर से वो तमाम अनवांटेड फीचर्स होंगे पॉप हो जाएंगे, मतलब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको कहीं असाइन नहीं कराया, तो हमारे पास कहीं पे सेव भी नहीं होंगे। कितना आसान तरीका था ये। देन फॉर रो डाटा इन टेम्स डॉट टेक टू, अब हमारा काम असल शुरू होने वाला है बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा परफॉर्मिंग कर लें सारी चीज़ें। ना फॉर रो डाटा इन टू, इसको रन करना भूल गया मैं, पहले रन कर लूँ। ऑलराइट, let's iterate over two examples from a temp dataset and apply our feature label feature function to each of the examples to make sure it's working. जो काम हम पहले किए थे ना, अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर अब वो जो हमने मेथड बनाया ना अपना फीचर्स और लेबल्स का, हम सिर्फ दो आइटरेट सैंपल्स के ऊपर आइटरेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर हम रन करें और देखें क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, फॉर डो डाटा इन temp डॉट टेक टू डॉट डाटा सैंपल्स हमारे पास फॉर टेम्पररी डो डाटा के अंदर आ गए हैं, और फीचर्स ले लिया हमने, लेबल ले लिया, इज इक्वल टू फीचर्स एंड लेबल डॉट डाटा। अब जो ऊपर मेथड बनाया था ना, अब उसको हम वर्किंग में लेकर आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या रिटर्न में आता है हमारे पास। अब डाटा इसके अंदर आएगा, उसमें से फीचर और लेबल ही रिटर्न होंगे टू डिफरेंट फीचर्स एंड लेबल। फिर हमने पीवी प्रिंट कर दिया फीचर्स को, और लेबल को भी प्रिंट कर दिया। लेबल के लिए पीवी प्रिंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेला एक वैल्यू है, ठीक है, उसको हम फिर भी समझ सकते हैं बड़ा आसानी से। तो जब ये प्रिंट हुआ, तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ डिटेल्स थी। हमारे पास यहाँ पे कहीं भी पिकअप डेट नहीं है, डेट टाइम नहीं है कि उसने उसको किस वक्त उठा पिकअप किए। हमारा सब ये है कि इस रास्ते से लेके उस रास्ते तक उसने उसको टैक्सी टैक्सी की है, ठीक है, इतने पैसेंजर्स थे टोटल, और कितना फेयर अमाउंट बना है। यही तो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपका फेयर अमाउंट कितना बनेगा। अच्छा, अब हमारे पास लेवल में क्या था, फेयर अमाउंट, तो हमारे पास भाई फेयर अमाउंट आ रहा है 11.5, जो कि बेसिकली वैल्यू जो है ना डॉलर्स में है। तो ये सोचिएगा इतना कम क्यों बन रहा है, तो 11.5 हमारे पास फेयर अमाउंट बन रहा है फॉर एन एग्जाम्पल। फिर हमारे पास एक दूसरी आइटरेशन स्टार्ट हुई, तमाम फीचर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, और फिर क्योंकि हमने उसको पी प्रिंट नहीं करा था, पी प्रिंट नॉर्मल प्रिंट किया, तो टेंसर बेस ही आ गया हमारे पास जवाब। तो इधर क्या लिखा आ गया 3.5, जो कि हमारी किसकी वैल्यू है, फेयर की वैल्यू, जो इस अकॉर्डिंग टू दिस फीचर हमारे पास अवेलेबल है इन अ डाटा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई ये जो हमारे पास कोड है फीचर्स एंड लेबल्स का परफेक्टली वर्क कर रहा है। असर्ट किसके लिए काम आता है, देखने के लिए कि हमारे पास कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं भाई, लिख के इफ अनवांटेड ट्रस्ट नोट इन फीचर डॉट की सो प्रिंट दिस। तो हमने ये काम सिंपल एसेट में कर दिया था कि अगर प्रॉब्लम हो रही होगी ना, तो हमारे पास एक्सेप्शन ही थ्रो हो जाएगी डायरेक्ट। एक लाइन में इफ एल्स की बजाय हमने एक लाइन में सारा काम कर दिया है। बैचिंग, let's now refactor our key dataset function so that it makes an additional argument batch size and batch the data correspondingly. We will use also the features and label function we implemented for a dataset to produce tuples of features and labels. अच्छा, एक चीज़ ये कि मैं जो काम है ना काफ़ी लंबा लंबा खींच खींच के कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग में काम क्या करता था, सब कुछ प्री डिफाइंड होता था, मैं किसी चीज़ को रिपीट नहीं करता था। रिपीट सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट 3 to 4 days, ताकि आप 3 to 4 days इन टेंसरफ्लो, 3 to 4 days इन पायटॉर्च, ताकि आपको पता चले कि चीज़ पहले कहाँ बनती है, फिर उसको आप कैसे एक्सपेंड करते हो, फिर कितना एक्सपेंड करते हो, कैसे प्रोडक्शन तक लेके जाते हो। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से प्रोडक्शन लिखना बैठते हो, तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है, ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, तो बैचिंग में क्या है, हमने बोला कि लेट्स डिफाइन द क्रिएट डेटासेट मेथड। हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन की, यहाँ पे हमारे पास पैटर्न आ रहा है, बैच साइज हमने दे दिया, चलो ठीक है। मतलब जो भी हम ट्रांसफर कर रहे होंगे इसके अंदर, अब पैटर्न के अंदर क्या होगा हमारे पास, कोई ना कोई मतलब यूआरएल होगा या कुछ भी होगा या डाटा होगा, जो भी है हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा। फिर ये हमने दे दिया बैच साइज, चलो ठीक है। अब बैच साइज के अंदर हमारे पास क्या है, द data dot experimental dot make CSV dataset method reads CSV file into a dataset। ये वही काम है जो हमने ऊपर किया था। अब हम क्या करेंगे, हम बैच साइज को परफेक्टली मेंशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बैच साइज क्या दिया था, 1 दिया था। अब हम पूरा का पूरा बैच साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा बैच साइज कितना होगा, क्योंकि अब हम ट्रेन करेंगे 2 बैच साइज के हिसाब से ना। लास्ट टाइम तो हमने 1 रख दी थी, लेकिन हम 2 बैच साइज के हिसाब से ट्रेन करेंगे। तो ये बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें हमने फीचर्स और लेबल्स डाल दिए हैं। मतलब पहले हमने डिफॉल्ट एक्स डाला था, अगर आपको याद हो, तो अभी हम लोग तमीज से पूरा CSV कॉलम से डिफॉल्ट्स डाल रहे हैं, फिर हम उसको उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करके डेटा सेट में डाल रहे हैं, देन रिटर्न डेटा सेट डॉट मैप फीचर्स एंड लेबल।
फ्यूचर में ना हमारे ये सब चीजें काम की नहीं होंगी, सब पूरा उसमें यही काम होगा, जो मेथड हमारा काम का है ना, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ये सब इसको समझने के लिए हमने वो सारी चीजें समझी ताकि हमें ये सब चीजें समझ में आ जाए। लेट्स टेस्ट दैट आवर बैचेस आर ऑफ द राइट साइज। बैच साइज क्या हमारा 2, टाइम इज इक्वल टू क्रिएट डेटा सेट, और हमने यहाँ पे ये बना दिया, चलो भाई हमने क्या मेंशन कर दिया कि बैच हमारा 2 है। ना फॉर एक्स बैच कोमा वाई बैच, अब ये कहाँ से बन रहा है, अगर कोई ये सवाल मत करे, क्योंकि ये अभी हम ऊपर बना कर आए हैं, ठीक है, और उससे भी ऊपर 200 बना के आ चुके हैं। फिर ना फॉर एक्स बैच कोमा वाई बैच एंड टाइम्स मेथड टेक 2, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो काम हमने ऊपर किया था कि जो भी हमारे मेथड्स बन रहे होंगे हर पर आइट्रेशंस, हमने उनको प्रिंट करना है, मतलब उनके हमने फीचर्स भी प्रिंट करने हैं और उनके हमने क्या प्रिंट करना है, डिफॉल्ट फेयर्स भी प्रिंट करने हैं। हमने यहाँ पे भी असर्शन डाल दी है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि वाई बैच जो है बैच साइज के बराबर हो, तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, जो कि कभी ऐसा होगा नहीं, कुछ भी कर लो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वाई बैच के अंदर अम, मतलब वो साइज बनेगा नहीं जो साइज हमारा एक्स बैच के हिसाब से बन रहा होगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे एक्स में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और उसमें कम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये अगर दो होंगे भी ना वाई बैच, तो ये बेसिकली एक ही उसमें होंगे, ये देख रहे हो, ये एक ही टेंसर बेस में आ रहे होंगे, क्योंकि हम उसको नंपाई में टर्न कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एक दफ़ा ऐसा अलग से नज़र आ रहा है। तो वाई बैच इज बेसिकली अ टेंसर, और ये दो वेरियस डिफरेंट आइडेंटिटी रखती हैं। अच्छा, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, लेट मी लुक एट इट। हाँ, अब यहाँ पे इसने कुछ डिफरेंट चूज कर लिए, पहले कुछ डिफरेंट चूज हुए थे, तो अब हमारे पास वो हमने देख लिया कि भाई अब बैच साइज के साथ भी हमारा एक कोड काम कर रहा है। हमने स्पेसिफाइड कर दिया यूआरएल हमारा टैक्सी ट्रेन डॉट सी एस वी है, डाटा उठा रहा है, बैच रिटर्न भी रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारे पास ये चीज़ भी रिटर्न हो रही है, और हमारे पास इसका वाई बैच डॉट नंबर भी रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसको आप ना भी लिखें एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो कोई इशू नहीं है। तो कम बैक नाउ इन द बिलो, क्योंकि ये थोड़ी बहुत मेरी पहले की बनी हुई थी आधी रेपो, तो उसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा लंबा करके मैं यहाँ पे मैंने पुश कर दिया। नाउ अ लास्ट पार्ट व्हिच इज शफलिंग। When training a deep learning model in batches over multiple workers, it is helpful if we shuffle the data. That way, different workers will be working on different parts of the input lab file at the same time, and so averaging gradient across worker will help. Also, during training, we will need to read the data indefinitely. Let's refactor our dataset function so that it shuffles data when the dataset is used for training. भाई ये क्या है, याद है क्या, खैर आप लोगों को भूल गया होगा कि हमने मशीन लर्निंग में भी ये काम कर रखा है, स्पेशली व्हेन वी वर ट्राइंग टू वर्क ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूजिंग मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल मॉडल्स, तो टोकनाइजिंग के वक्त और इस तरह की बहुत सी चीज़ों के वक्त हमने डाटा को बहुत ज़्यादा शफल किया है, और जब भी हम डाटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं तो वो शफल ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम डाटा को शफल कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या होती है, जब आपके पास टेस्ट होता है ना, क्विज फॉर एग्जांपल, या आपको लर्निंग के लिए कोई चीज़ दी जाती है, तो ताकि हमें ये याद हो कि भाई डाटा एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, बायस ना हो जाए कि भाई हाँ ये चीज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से बायस ना हो जाए, हम डाटा को शफल कर देते हैं, ताकि अगर अब वो सीख गया तो उसको मतलब है कि अब वो सही सीख गया। जैसे बचपन के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि पहले हम लोग क्लास में नहीं, बल्कि प्रेप के अंदर हम देखते हैं, या मॉन्टेसरी में हम देखते हैं, हमें मेरा टेबल्स पढ़े हैं हमने, एंड देन वी गोना हैव सम डॉजिंग टेबल्स इन सम हायर ग्रेड्स। वो क्यों होते हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज डॉजिंग, क्योंकि आपको डॉज कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तो वो सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है ना, सो नाउ यू गोना टेक सम टाइम टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। अगर आपको याद होगा तो फर्क लिख दोगे, लेकिन यानी कैलकुलेट करोगे तो टाइम लोगे। ठीक हो गया, या फिर एमसीक्यूज होते हैं, शफल्ड होते हैं, वो तो इसलिए शफल्ड होते हैं क्योंकि हर बंदे के पास वो सेम एमसीक्यूज जा रहे होते हैं, उनके ऑप्शन शफल होते हैं ताकि हम एक दूसरे से इंटरलिंक ना करें। वो इसकी इतनी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बनेगी, तो परफेक्ट एग्जाम्पल यही बनेगी जो हम डॉजिंग टेबल की मैंने एग्जाम्पल अभी दी आप लोगों को। सो इतना नीचे कहाँ है, तो अब वही है हमारा के डेटा सेट का फंक्शन। इसमें हमने पैटर्न डाल दिया, बैच साइज डाल दिया, और मोड डाल दिया है ईवॉल। अब ये ईवॉल क्या है, वी गोना सी दैट हियर। ठीक है, अब हमने वही इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन कह रहा हूँ, मेरा मेथड है जिससे हमारा डेटा सेट हमारा बन रहा है,
उसके बाद हमने बोला द मैप फंक्शन एग्जीक्यूट स्पेसिफाइड फंक्शन फॉर ईच आइटम इन एन आइटरेबल, दिस item is sent to the function as a parameter. Dataset is equal to dataset.map features and label.cache. If mode is equal to train, dataset is equal to dataset.shuffle 1000.repeat. Take advantage of multi-threading one auto tune. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कोड है, उसको गौर से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा है, पहले हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम कैशे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं डेटा सेट के साथ साथ, कि हमारे पास उसकी पोजिशनल कैशे भी हो, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल उससे ये फायदा हो जाता है कि अगर हमें पता हो कि डेटा सेट के अंदर अभी 1 आ गया है ना, तो हमें पता है कि 1 अब बस में बैठ गया है, अब 1 दोबारा हमारे पास बस में नहीं आएगा। दैट इज व्हाई वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस कैशे हियर। देन इफ मोड इज इक्वल टू ट्रेन, डेटा सेट इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट शफल 1000.repeat, मतलब 1000 के हिसाब से हमने उसको शफल करना, ठीक है, ताकि अब जितना ज्यादा हाई पर रख दोगे उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी शफलिंग हो जाती है। एंड फॉर दिस 10,000 विल नॉट बी गुड, क्योंकि सैंपल्स हमारे इतने है ही नहीं, तो 1000 इज अ गुड टेक्निक। 1000 भी बहुत है यार, 1000 कॉम्प्लिकेशंस भी करते करते न्यूरल नेटवर्क खुद डाई हो जाएगा, तो उसको कहेगा भाई डायरेक्ट ऐसे ही मैं याद कर लूँ। ठीक है, जस्ट फॉर क्लियरिंग एन लेमन। तो इफ मोड इज इक्वल टू ट्रेन, डेटा सेट इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट शफल। ये ट्रेन क्यों लिखा है कि अगर हमारा डाटा ट्रेनिंग के मोड पे हो तभी ये काम हो, वरना ये काम ना हो, क्योंकि शफल हमें तभी करना है जब हमें डाटा सेट हमारा ट्रेनिंग के दौरान हो रहा हो। अगर टेस्ट के दौरान अगर हम डाटा सेट को ट्रेन कर रहे हो, या डाटा सेट को जब हम सिर्फ रीड कर रहे हो ना कभी, तो डाटा हमारा शफल ना हो। तो नाउ डेटा सेट इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट प्रीफेच 1। अब 1 क्या लिखा है हमने, ऑटो ट्यून। तो इससे क्या होगा हमारे पास, हम अगर हमारे पास मल्टीपल बैच हैं, जो भी बैच हैं, अगर हमारा सिस्टम ऑटो थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है करता है, बच्चे बच्चे का कंप्यूटर भी कम से कम 10 थ्रेड्स 5 थ्रेड्स तो होंगे यार, एटलीस्ट 4 थ्रेड तो होते ही हैं। ठीक है, तो 4 थ्रेड्स हैं होंगे आपके पास, आपको कितना फायदा होगा। आप सिंगल थ्रेड पर काम नहीं करोगे, आप 4 थ्रेड पे एज अ पैरेलल कंप्यूटेशन पर काम कर रहे होगे। तो ये एक मल्टी थ्रेडिंग पे हमने यहाँ पे उसको ऑटो ट्यून कर दिया है, तो आपका डेटा सेट इन अ मल्टी थ्रेड परफॉर्म टू इनहांस योर परफॉर्मेंस आपके पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सब ये काम था, और यहाँ पे हमारी होती है वर्कशॉप खत्म। अब यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, लेट्स चेक दैट आवर फंक्शन वर्क्स वेल इन बोथ मोड्स। हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्प्स इज इक्वल टू क्रिएट डेटा सेट, हमने यहाँ पे अपना यूरल डाला, टू डाला, और यहाँ पे ट्रेन डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, ईवॉल डाला हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेन के अंदर हमें अगर उसको रन करें, और इसको ईवल के अंदर अगर हम उसको रन करें, तो हमारे दोनों के अंदर जो डाटा होगा ना वो डिफरेंट बनेगा। अगर आप यहाँ देखो, इत्तेफाक से 73 और 74 या बन रहा है, लेकिन इसका पॉइंट्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा सा और आगे। ऑल राइट, कहाँ गया, ये रहा। अब ये जो है यहाँ पे 73 यहाँ पर आ गया, 97,315,74.0032, जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे 73 आ रही है, यहाँ पे हमारे पास फिर आ रही है 40 आ गई, फिर यहाँ पे हमारे पास 73 दोबारा कुछ डिफरेंट वैल्यू आ गई हैं, मतलब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू जनरेट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, बिल्कुल ही डिफरेंट वैल्यू जनरेट हो रही हैं। अब अगर आप ये देखो कि भाई वैल्यूज कभी कभी सेम हो रही हैं, तो ये बेसिकली सेम नहीं हो रही होती। अगर आप देखो तो ये बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज हैं, क्योंकि इनके डेसिमल में फर्क है। ठीक है, ये इनके एक थोड़े बहुत डेसिमल से बहुत फर्क पड़ रहा होगा, ये डिफरेंट आइडेंटिटी प्रेजेंट कर रही है। जरूरी नहीं है ये उसी रो की या उसी कॉलम की मतलब हो, तो ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज की पूरी वर्कशॉप का इंसेंटिव सिर्फ छोटा सा एक था, वो था सिर्फ ये कोड हमें बनाना था। अब आप बोल रहे होंगे सर इतना सा कोड पढ़ाने के लिए आपने हमें इतना सारा क्यों पढ़ाया, ताकि आप लोग थोड़ा सा थकें, आपको पता चले कि ये कोड कैसे बना है। अगर आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि इस कोड के पीछे एक अप्रोच क्या है, जैसे हम लोग मैट्रिक में, इंटर में, या ओ लेवल्स में, क्लास 8 में हम लोग डेरिवेशंस करते आ रहे हैं। किसी भी साइंटिफिक इक्वेशन जो ड्राइव इक्वेशन होती है उसको बनाते हैं कि भाई बना कैसे है, ये वजूद में कैसे आई, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई। आप लोग बोलते हो दैट्स अ स्टूपिड आइडिया टू डू दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। इन द वर्ल्ड ऑफ साइंटिस्ट या इन द रियल वर्ल्ड, मैं कहता हूँ दैट्स अ परफेक्ट आइडिया टू डू दिस। आपको पता चलता है कि एल्गोरिथम मेकिंग होती कैसे है, दिस इज नोन एज एल्गोरिथम मेकिंग स्किल।
तो ये होनी बहुत ज़रूरी है फॉर डीप लर्निंग। इतनी भी ज़रूरी नहीं है लेकिन, क्योंकि एआई के अंदर बंदा आ जाता है ना एक दफ़ा, तो एआई के अंदर आने के बाद उसकी ना डीप लर्निंग स्किल्स, एल्गोरिथम स्किल्स गिर जाती हैं। इसकी रीज़न ये होती है वो सारा काम एपीआई के थ्रू करने लग जाता है। तो अगर आप दोनों चीज़ें साथ लेकर चलेंगे, सो यू गोना बी द रियल मास्टर क्लास स्टूडेंट ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड इंशाल्लाह। ऑलराइट गाइस एंड स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस हो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हमने यहाँ पे हर तरह का काम कर लिया। यस हमजा, वी कैन यूज पीक फंक्शन, दिस विल नॉट रिमूव वैल्यू फ्रॉम द डाटा सेट, लेकिन हमें रिमूव करना था तो तभी हमने पीक यूज किया है। अच्छा, पॉप यूज करा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इपॉक बेस्ड लर्निंग एंड बैच लर्निंग? राइट, गुड। देखो, इपॉक बेस्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपका मेनली जो बैच साइज होता है वो नॉर्मलाइज होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन बैच साइज की जब आप इंक्रीज करते हो ना, तो आपके नंबर ऑफ इपॉक्स के अंदर लर्निंग रेट चेंज हो जाता है। कहाँ अगर आप एक बैच साइज दे रहे थे, और फॉर एग्जांपल कल जो हमने लर्निंग करी ना वो बेसिकली इपॉक बेस्ड लर्निंग कहलाएगी, आज जो हमने लर्निंग करी है वो बेसिकली बैच साइज बैच लर्निंग कहलाएगी। क्यों? बिकॉज इपॉक के अंदर क्या होता है हमारे पास, लेट मी टर्न ऑफ माय स्मार्टफोन। All right, so it was a call to alert that your time over. ओके, अच्छा, सो हो गया। अच्छा, कल जो हमने काम किया था वो इक्वॉक बेस्ड लर्निंग थी, वो स्टेप बेस्ड लर्निंग थी। कल उसमें बैच साइज इंक्लूड नहीं था, लेकिन आज जो हम काम कर रहे थे दैट वाज ऑल ऑन बैच साइज। तो आसान वे में मैं अभी यही बता सकता हूँ, लेकिन इसके और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इक्वॉक बेस्ड लर्निंग की और बैच बेस्ड लर्निंग की, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। नाउ एनी अदर क्वेश्चन गाइस इफ यू आर हैविंग, सो लेट मी नो। सो I'm gonna resolve those queries. Otherwise, we're gonna end the workshop. Guys, any question? आई गेस या तो सबको सब समझ में आ गया, या फिर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। यही दो रीजन होती है जब आप लोगों को सवालात नहीं आ रहे होते। ऑल राइट, सो आई गॉट अ क्वेश्चन के। ऑल राइट, गुड गुड गुड। तो एक क्वेश्चन था मेरे पास कि numpy, why we are not can we use numpy for all डेटा इंपोर्टिंग सो वन पांडास? हम काम कर रहे होते हैं और काम के दौरान हमें सब टेंसर्स यूज करने होते हैं, तो numpy हम डायरेक्ट पांडास के थ्रू कन्वर्ट करें और फिर टेंसर फ्लो में कन्वर्ट करें, तो हम डायरेक्ट टेंसर फ्लो की डेटा एपीआई भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अपना यूआरएल पास करें और डायरेक्ट ही डेटा बना दें। Everyone is saying that we're gonna meet tomorrow and with some more फैशनेबल वर्कशॉप। कल की वर्कशॉप बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही आसान होगी। अब आज तक तो आप बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में घूम रहे थे, जिस तरीके से हम मशीन लर्निंग में पहले घूमते रहे कॉम्प्लेक्स वे में, लेकिन कल की वर्कशॉप इंशाल्लाह बहुत आसान होगी। सो फॉर टुमारो मैं आज तक में जो भी पढ़ा है वो सब आपकी तैयारी हो चुकी हो, बिकॉज तभी मजा आएगा, वरना अगर आप पेंडिंग में रहते रहे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। Till that, love, हाफिज, बाय बाय।